Good afternoon to all participants. On behalf of Sitara, I welcome you to day 26 of the Appendix 3 session. The topic for the day will be tenders and contracts. Today we have with us Sri Muhammad Afzaluddin Garu, faculty RIFM, who will take you forward to the topic. Good afternoon, sir, and welcome to the session. Now over to you, sir, for the next few hours. Thank you. Thank you, Mani. So, good afternoon, all participants. Am I audible, Rajveer? Yes, you are audible, sir. How about the participant, Rajveer? Yes. It is unmuted. Yes. Okay. All are unmuted, sir. Okay. Done. Thank you. Should I unmute? Okay. Fine. So, good afternoon once again. So, as I told you in my last session, I am taking this session for the benefit of the 3A candidates, not for the SSOs or the officers. So I told last time that I'll be going basics. I'll be going basis. So I'll be covering the entire topics of the general expenditure. So far we have covered the abstract estimates and detailed estimates. What are the various types of estimates? Then what are the checks that the accounts office exercise at various estimates we have seen, and we have also seen various types of abstract estimates and also seen the various types of detailed estimates also. So detailed estimates and the estimates on construction side also we have seen. So let me recapitulate it. The abstract estimate is prepared for the purpose of getting the administrative approval of the competent authority and for the purpose of inclusion of the work in the budget, in the pink book. And on railway parlance, the abstract estimates, various abstract estimates are there. One is the survey. Survey is done for the major projects, which is also called the project abstract estimates. Then we have the normal abstract estimates for the open line, costing other than projects. When I say projects, it is new line, gauge conversion, doubling, planets. Let me also remind you that last time we were discussing about the various planets, various demands for grants, how the funds are mapped, the demands are mapped for the purpose of getting the approval of the parliament. All those details we have discussed. Probably you might have revised, you might have gone through, you might have by-hearted certain points which I was discussing with you. So I'll not again go into those details. So we will just I'll review the topics what I told briefly. That the abstract estimates on railway parlance is nothing but the estimates, the abstract estimates, the rough estimates approved by competent authority costing more than 2.5 crores, included in the pink book as an itemized work, and umbrella works included in the pink book as an itemized works, and the works which are approved by DRMs, which are approved by the general managers as under the lump sum grant given under each plan head. And then we also had the out of turn works. So all these were the abstract estimates. Once these abstract estimates are approved, included in the budget, included in one of these documents, whether it is pink book, whether it is LAW, whether it is the lump sum works program, then we will go for the detailed estimates. So this entire process of the abstract estimate was done through IRPSM. That also we have discussed, Indian Railways Project Sanction Management. All these works are processed, these IRPSM, and approved at various levels, whether it is DRM, GM, or Railway Board. Then once it is approved, they get included in these booklets called the pink book, the LAW, the lump sum works program, etc. Okay. So once the abstract estimate process is over, then we went for detailed estimates, and detailed estimates are prepared for the purpose of getting the technical sanction of competent authority. The abstract estimates were prepared for the purpose of getting the administrative approval, whereas the detailed estimates are prepared for the purpose of getting the technical sanction of the competent authority. And these estimates are prepared based on the
plans and drawings, approved plans and drawings. The quantities, the rates should be based on the latest market rates. And finally, when the detailed estimate was prepared, then we got it sanctioned by the different level of officers, and the powers of sanctioning detailed estimate, full powers to GM, except in case of the scope, the excess where the scope exceeds 20%. If the scope exceeds 20%, then it has to go to the board. Otherwise, the general manager has full powers to sanction the detailed estimates without any financial limit, without any 2,000 crores, 3,000 crores detailed estimates also can be sanctioned by the general manager. But he has a restriction for approving the offset estimates, which he has only up to 2.5 crores, whereas the detailed estimates full powers. So this is, once the detailed estimate was done, then we have to execute that work. So for execution of those works, then we need to call for the tenders. So this was, as I briefed you, these are the prerequisites for execution of a work or a service on an Indian Railway. Offset estimates for works chargeable to demand number 16 are the works, revenue maintenance works chargeable to revenue also. Then once the offset estimates are done, detailed estimates are prepared. And then for the services, we don't prepare generally the detailed estimates. We prepare the detailed estimate in the first instance itself, first stage itself. We don't go for the offset estimate. We take over the administrative approval. Then we prepare the detailed analysis of the cost and all the details. Then we'll take the concurrence. We will take the sanction of competent authority, and the proposal is ready for tendering. So before the tenders are invited, either whether it is sanctioned works or whether it is sanctioned services, then we need to ensure that adequate funds are also available. If you don't have adequate funds, though we have a sanctioned estimate, we cannot go ahead with the execution of the work. Suppose we a short bit last in the examination, we can invite the tender when there are no adequate funds, but the sanction to the detailed estimate is available. Whether it is true or false, it is false only because at the, apart from the technical sanction to the detailed estimates, we also require the adequate funds for inviting tenders. Then we have to select the mode of tendering. There are so many types of tenders. So we will see what are those types of tenders also. अच्छा, sorry, I forgot. हिंदी में भी बोलना है. तो ये जो है, ये पूरे जो हमने इससे पहले देखा था, ऑफसेट एस्टिमेट्स किस तरह बनते हैं और डिटेल एस्टिमेट्स किस तरह बनते हैं. अभी हम देखेंगे, आज देखेंगे हम टेंडर्स देखेंगे. टेंडर्स क्या चीज होती है, कितने प्रकार के टेंडर्स होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट कैसा साइन होता है, कॉन्ट्रैक्ट कैसा एग्जीक्यूट करते हैं, कैसा ऑपरेट करते हैं, सभी चीजें हम आज देखेंगे. तो देखने से पहले, हम टेंडर्स देखने से पहले हमें ये चीजें फिर थोड़ा एक दोहरा लें. तो ऑफसेट एस्टिमेट जरूरी है. ऑफसेट एस्टिमेट के बाद डिटेल एस्टिमेट जरूरी है. डिटेल एस्टिमेट के बाद हम फंड्स भी देखना है. फंड्स के बाद हमें टाइप ऑफ टेंडर सेलेक्ट करना है. ओपन टेंडर जाना है, कोटेशन जाना है, लिमिटेड टेंडर जाना है, स्पेशल लिमिटेड टेंडर जाना है. दिस वी हैव टू डिसाइड दैट. उसके बाद में हमें फिर टेंडर कंडीशंस डिफाइन करनी है. जनरल कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट है, वर्क्स को अलग है, सर्विसेज को अलग है. तो वी कैन ऑल्सो हैव द स्पेशल कंडीशंस एंड वी हैव द शेड्यूल ऑफ वर्क्स, सर्विसेज रेट्स, क्वांटिटीज, सभी चीजें अवेलेबल है. जीसीसी हमें सेलेक्ट करना है. उसके बाद में फिर स्पेशल कंडीशंस बनाएंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस बनाएंगे. एएमसी अगर सीएमसी रहा तो उसके बाद में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिक्स करेंगे. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिक्स करेंगे, ईएमडी फिक्स करेंगे, पीबीजी परफॉर्मेंस गारंटी फिक्स करेंगे, फिर एसडी फिक्स करेंगे. उसके बाद हम एक नोटिस इनवाइटिंग टेंडर प्रिपेयर करेंगे. अगर टेंडर बुलाना है, ओपन टेंडर और लिमिटेड टेंडर जो भी है, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर बनाएंगे. अगर कोटेशन बुलाना है, नोटिस इनवाइटिंग कोटेशन बनाएंगे. उसके बाद उसको पब्लिसिटी करेंगे. उसके बाद में फिर उसको नोटिस पीरियड देंगे. अगर कोरिजन मान लो जरूरत है, कोरिजन मैंने करेक्शन है तो कोरिजन इश्यू करेंगे. ओपन टेंडर्स वर्क्स के लिए IREPS से जाएंगे. ओपन टेंडर्स सर्विसेज के लिए जेम में जाएंगे. जेम इज ई मार्केटिंग प्लेस, गवर्नमेंट ई मार्केटिंग प्लेस.
और टेंडर ओपनिंग होगा, टेंडर ब्रीफ होगा, उसके बाद में आजकल डायरेक्ट एक्सेप्टेंस पावर्स हैं, टेंडर कमेटी होगी, टेंडर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी होगा, उसके बाद में लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इशू किया जाएगा और उसके बाद में एग्रीमेंट साइन होगा, उसके बाद मेजरमेंट्स होंगे, उसके बाद फाइनल बिल्स होगा। ये सभी चीजें हमें कवर करेंगे। सो हम एक बाय वन विल गो इन डिटेल्स। ठीक है। सो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ टेंडर्स, द ऑप्शंस अवेलेबल वर्क्स एग्जीक्यूशन के लिए। ऑप्शंस, ये चीजों का ऑप्शन अवेलेबल है। एक तो क्या है, पहली बार हम डिस्पेंसेशन ऑफ कॉलिंग ऑफ टेंडर। जनरली फॉर एनी वर्क वी हैव टू गो फॉर ओपन टेंडर बेसिस। ट्रांसपेरेंसी के लिए हमें ओपन टेंडर जाना जरूरी है। वी हैव टू गो फॉर ओपन टेंडर्स फॉर ऑल वर्क्स फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड कॉम्पिटिटिवनेस। लेकिन every time we cannot go for open tenders, so we have some other means of tendering also, other means of finalizing the contracts also. So one is, we need not call tenders. Dispensation of calling of tenders is nothing but we need not call tenders. तो टेंडर नहीं बुलाएंगे तो कैसा फाइनलाइज करेंगे, कैसा टेंडर करेंगे? फिर हम कोटेशन बेसिस पे करेंगे। So we will finalize the agency on quotation basis. Without calling tenders, we will finalize the agency by calling quotations. तो quotations के लिए भी प्रोसीजर है, ऐसा नहीं कि सिंपली 3 कोटेशन ले और फाइनलाइज करें, ऐसा नहीं है। कोटेशन के लिए भी प्रोसेस है, हम उसको बता देंगे आपको। उसके बाद फिर ओपन टेंडर्स हैं। देन ओपन टेंडर्स वी हैव टू एडवर्टाइज इन द पेपर्स, वी हैव टू अपलोड द टेंडर नोटिस इन द IREPS एंड GEM। और so there are some advantages, there are some limitations for each kind of things, हम वो देखेंगे पहले। तो dispensation of calling of tenders, dispensation of calling of tenders को हम लेके चलेंगे। तो यहाँ पर urgent works है। If the work is urgent and the value is less than 10 lakhs, the value is less than 10 lakhs and the work is urgent and the work, a small work which cannot be executed under a zonal contract. A work cannot be executed in any other existing contracts. इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर वर्क अर्जेंट है तो we can dispense with calling of tenders. Dispensation of calling of tenders का मतलब है हम वर्क अवार्ड करेंगे ऑन कोटेशन बेसिस पे। ठीक है। तो इसके लिए क्या प्रोसेस है? पहले तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ले लेंगे। किसका ले लेंगे? यहाँ पर जो 10 lakhs के पावर्स हैं SAG ऑफिसर्स के। J ग्रेड हैज पावर्स अप टू 5 lakhs, सीनियर स्केल ऑफिसर हैज पावर्स अप टू 2 lakhs। उसका थोड़ा एनुअल लिमिट भी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या क्या एनुअल सीलिंग्स हैं। तो मान लो एक आपको एक 9 लाख का एक वर्क है, 9 lakhs यू एस्टिमेटेड, तो 9 lakhs का वर्क है, उसको हम कोटेशन बेसिस पे अवार्ड करना है बिकॉज अर्जेंसी है और वैल्यू भी थोड़ा है। हम उसको, तो हम क्या करते हैं, पहले एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेते हैं ऑफ द सेम अथॉरिटी। अगर ये पावर्स DRM के पावर्स में है तो DRM का लेंगे, सीनियर DN के पावर्स में तो सीनियर DN का अप्रूवल ले लेंगे। उसके बाद में फिर फाइनेंस कंकरेंस के लिए जाएंगे। फाइनेंस को पूछेंगे भाई सर ये हमारा जो काम है थोड़ा अर्जेंट है, हम इसको टेंडर नहीं बुलाएंगे, हम इसको कोटेशन बेसिस पे देंगे। तो फाइनेंस वाले उसको एग्जामिन करेंगे, उसके बाद में उसको अग्री करेंगे, फाइनेंस कंकरेंस दे देंगे कि ठीक है आप इसको आप कोटेशन से प्रोसेस कर लो। उसके कंडीशन लिखेंगे थोड़े। जैसा कंकरेंस आ जाता है तो हम क्या करते हैं, पहले कोटेशन, नोटिस इनवाइटिंग कोटेशन को बनाना है। नोटिस इनवाइटिंग कोटेशन, उसमें क्या करते हैं, पहले शेड्यूल लिखेंगे, ये शेड्यूल, ये काम करना है, ये हमारे टर्म्स एंड कंडीशन से, ये हमारे ऑब्लिगेशन से, ये आपके ऑब्लिगेशन से, पूरे टर्म्स एंड कंडीशन बनाएंगे उसमें। उसके बाद में शेड्यूल्ड जो रेट है वो बोलेंगे हमारा जो वैल्यू ऑफ द वर्क एज पर दी एस्टिमेट हमारा है 9 लाख। तो उस पर आप उसको आपका रेट कोट करेंगे उसमें। तो वी विल आस्क द एजेंसीज टू कोट द रेट। सो जो नोटिस इनवाइटिंग कोटेशन जो बनता है, हम उसको क्या करते हैं, नोटिस बोर्ड पर पेश करना चाहिए। अपना नोटिस बोर्ड है, अपना ऑफिस का नोटिस बोर्ड है, अपना DRM ऑफिस का नोटिस बोर्ड है, और कहीं ऐसी जगह का जहां पर कॉन्ट्रैक्टर्स आते जाते रहते हैं, कहीं पब्लिक प्लेस है, तो वहां पर आप एक नोटिस लगा देंगे कि भाई हमारे ऑफिस में एक थोड़ा काम है, तो इसको हम कोटेशन बुला रहे हैं, इसका लास्ट डेट है 15th of October और 15th of September।
इसके लिए कम से कम 7 डेज नोटिस है। नोटिस इन्वाइटिंग कोटेशन जब पेश करते हैं उसके बाद में मिनिमम 7 डेज नोटिस देना चाहिए इसको। 7 डेज के बाद वो कोटेशन जो भी हैं वो खोलेंगे हम। तो कोटेशन कहाँ रिसीव करेंगे हम, इस पे हम डिस्कस करते हैं। कोटेशन ऐसा नहीं कि उसके पास डायरेक्ट कोटेशन ले लेंगे, ऐसी बात नहीं होती। द कोटेशंस हैव टू बी रिसीव्ड इन एट ए स्पेसिफाइड प्लेस, इन ए स्पेसिफाइड बॉक्स। अगर कोई ऑफिसर डायरेक्ट लेता भी है तो उसको साइन करके उसमें बॉक्स में डाल देता है, बट बिकॉज ही इज नॉट सपोज टू होल्ड दी कवर्स इंडिविजुअली, अलग से उसको होल्ड करने की जरूरत नहीं है। ही नीड नॉट होल्ड देम इंडिपेंडेंटली। तो एक बॉक्स रखेंगे, उस बॉक्स में 7 दिन तक ओपन रहेगा। 7वें दिन जो टाइम स्पेसिफाइड किया जाता है जब उसको क्लोज करेंगे और उसको ओपन करेंगे। कितने देखते हैं कि 10 आ गए कोटेशंस। तो मिनिमम अगर कोटेशन फाइनलाइज करना है तो मिनिमम 3 कोटेशन की जरूरत है। तो कम से कम जो भी बॉक्स में जो कोटेशन दिखते हैं वो कम से कम 3 कोटेशन होना चाहिए, 3 कोटेशंस। तो मान लो 5 कोटेशन आ गए तो उसको 5 कोटेशन खोलेंगे हम, उसके सबके साथ पढ़ेंगे भाई इनका रेट ये है, इनका रेट ये है, इनका रेट ये है। उसके बाद में फिर उसको राउंड ऑफ करेंगे। उसके बाद एक टैबुलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे। मान लो हमारा जो एस्टिमेट कास्ट था 9 लाख था, इसमें L1 को दिया 9.5 लाख, L2 को 10.5 लाख, 3-4 रेट्स डिफरेंट आ गए। तो उसको एक टैबुलेशन स्टेटमेंट बनेगा। टैबुलेशन स्टेटमेंट फिर फाइनेंस वाले वेट करेंगे। फाइनेंस वाले जब टैबुलेशन स्टेटमेंट वेट करते हैं तो केवल फैक्चुअल वेरिफिकेशन करेंगे, उसमें अपना कोई योगदान नहीं करेंगे, उसमें अपने ऑब्जर्वेशंस नहीं लिखेंगे, उसमें खाली फैक्चुअल वेरिफिकेशन करेंगे। वो जाएगा फिर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी, जो भी हमारा जो उसके हिसाब से जो कोटेशन जो एक्सेप्ट करता है, जो एसए ग्रेड ऑफिसर 10 लाख, जे ग्रेड ऑफिसर 5 लाख, जो सीनियर स्केल ऑफिसर 2 लाख करते हैं। तो वो लोग उसको अगर ऑफर रीजनेबल है, हमारे जो एस्टिमेट से इर्द गिर्द है रीजनेबल है, सो दे कैन एक्सेप्ट द कोटेशन एंड दे कैन इशू ए वर्क ऑर्डर। यहाँ पर अग्रीमेंट नहीं बनता है, कोटेशंस में अग्रीमेंट नहीं बनता है। एक वर्क ऑर्डर इशू किया जाता है कि भाई तुम्हारा जो कोटेशन था वो उसका कोटेशन में आपका लोएस्ट आया है एंड द एक्सेप्टिंग अथॉरिटी हैज अप्रूव्ड योर कोटेशन, यू प्लीज कैरी आउट द वर्क। हम इसको एक वर्क ऑर्डर इशू करेंगे। उसमें लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं होता, उसमें एक वर्क ऑर्डर होता है, वर्क ऑर्डर इशू कर देंगे। तो इसमें हमें ध्यान ये रखना है कि इसकी पब्लिसिटी, ऐसा नहीं कि हम जनरली हम ये देखते हैं और 3 कोटेशन कई ओएस ले आता है, वो अपने अभियों के पास ले आता है, लेके आके सीधा एसओ को बोलता है कि भाई आप साइन करो। जब भी आप 3A पास करेंगे, एसओस बनेंगे, तो अब ऐसी जगह आप साइन मत करना। तो बोलना है कि भाई आप प्रोसीजर फॉलो किए हैं नहीं, हैव यू फॉलोड द प्रोसीजर और नॉट, वेदर यू हैव गिवन द adequate publicity or not, whether you have put the notice NIQ on the notice board or not. Minimum required publicity तो बहुत जरूरी है, minimum required notice is also required for invitation of the quotations. ऐसा नहीं कि वो 3 कोटेशन ले आया और ऐसो बैठे सेक्शन अपने सेक्शन में साइन कर दिया, ये गलत है, ये गलत है। आप उसको बोले कि भाई आप स्पेसिफाइड टाइम पे अपने ऑफिस में खोलिए, हम आएंगे आपके पास, हम आके विटनेस करेंगे, हम जाके आप विटनेस करेंगे और बेस्ड ऑन दी ऑफर्स रिसीव्ड हम उसको नंबर करेंगे और उसके बाद में उसको अवार्ड करेंगे, उसको अवार्ड नहीं, उसको वेरीफाई करेंगे और भेज देंगे। सो ये डिस्पेंसेशन ऑफ कॉलिंग अप जो टेंडर्स का जो प्रोसीजर है, इसको फॉलो करना है। इसका मिनिमम डेज 7 डेज नोटिस है और इस नोटिस पीरियड को कम भी कर सकते हैं। मान लो एक काम अर्जेंट है, एक काम अर्जेंट है, तो कल ही कुछ मिनिस्टर आ रहा है, तो उसके लिए कुछ पंडाल की जरूरत बनना है, पंडाल बनाना है। तो पंडाल बनाने के लिए हम 7 दिन तो नहीं वेट कर सकते, 7 दिन नोटिस नहीं दे सकते क्योंकि कल आ रहा है वो। तो हम क्या करेंगे, 1 दिन का नोटिस देंगे, 1 दिन का नोटिस देंगे। जो भी हमारे पास वर्किंग कॉन्ट्रैक्टर्स है उनको सब ईमेल द्वारा भेजेंगे सबको। तो देयर इज अ प्रोविजन इन दी MSOP दैट दी कोटेशंस नोटिस कैन आल्सो बी reduced 7 days जरूरी नहीं है, इट कैन आल्सो बी reduced with the approval of the competent authority. तो ये रहा dispensation of calling of tenders का, this is the award of work on quotation basis का। इसमें 2-3 चीजें हैं, ये आपको यहीं समझा के चलूं। इसमें वर्क्स डायरेक्टली रिलेटेड टू सेफ रनिंग ऑफ ट्रेन्स होंगे। जे ग्रेड ऑफिसर और सीनियर स्केल ऑफिसर 2 लाख विदाउट फाइनेंस कंकरेंस और 5 लाख विद फाइनेंस कंकरेंस। और उसके बाद में जो SAG ऑफिसर्स है 10 लाख
हर केस पे विद फाइनेंस कंकरेंस उनका जो एनुअल सीलिंग है 1.2 करोड़ रहेगा। ये भी वर्क अर्जेंट वर्क रहेंगे। और ये टर्म्स एंड कंडीशन स्टिपुलेटेड जो भी है, जो मैं पहले डिस्कस किया था उसकी वो है, जो कि the work which couldn't have been done through a zonal contract, the work which couldn't have been done as a variation in existing contract, and the work is urgent and valuing less than 10 lakhs, we can go for the dispensation of the tenders. इसमें एक दो तीन चीजें देखनी जरूरी है। तो ये प्रोसेस है, ये अवार्ड ऑफ वर्क ऑन कोटेशन बेसिस। तो बोलेगा क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्पेंसेशन ऑफ कॉलिंग ऑफ टेंडर्स? ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसीजर। तो जो भी हमने डिस्कस किया इससे पहले, व्हाट इज डेलीगेशन जो भी है, जो प्रोसीजर जो भी है, और इसमें जो पॉइंट्स हैं ये है, पहले तो अप्रूवल होगा, कंकरेंस होगा, सैंक्शन होगा, उसके बाद में एक्सेप्टेंस होगा। अर्जेंसी होनी चाहिए, और उसका जो प्रोविजन दूसरे कॉन्ट्रैक्ट्स में उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं, ये होनी चाहिए। और अगर मान लो सीनियरियन एक 2-3 सीनियरियन है, एक सीनियरियन के पावर दूसरे सीनियरियन नहीं कर सकते, किसके पावर्स वही करेगा। The powers cannot be used cross. Suppose some executive is the electrical department, he has some civil engineering work, so the senior DN cannot ask him to give his powers. See, electrical work is pertaining to the electrical department, civil engineering work is pertaining to civil engineering work, so civil engineer has to use his powers only. तो NAQ बनाना है, फिर 7 days नोटिस देना है, EMD नहीं होगी, परफॉर्मेंस गारंटी नहीं होगी, सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं होगी। सिक्योरिटी डिपॉजिट रख सकते हैं, अगर कोई वर्क अगर मेंटेनेंस है तो सिक्योरिटी डिपॉजिट रख सकते हैं। ओपनिंग होगा, टैबुलेशन होगा, वेटिंग ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट होगा, एक्सेप्टेंस एंड इश्यू ऑफ वर्क ऑर्डर होगा। नेगोशिएशन नहीं करना है, इसमें नेगोशिएशन रेट अगर ज्यादा है तो उसको नेगोशिएशन पे नहीं बुलाना है, रेट अगर ज्यादा है तो उसको फिर रिकॉल करते हैं, कोटेशन रिकॉल करते हैं। सो जनरली नो वेरिएशन, नो एक्सटेंशन, ये हैं पॉइंट्स इसके, जो अवार्ड ऑफ वर्क ऑन कोटेशन बेसिस के। ठीक है, तो ये रहा जो फर्स्ट पार्ट। उसके बाद में फिर ओपन टेंडर जाते हैं हम। ओपन टेंडर्स हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि ओपन टेंडर्स, एवरी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैज टू मेंटेन द ट्रांसपेरेंसी, हैज टू गेट द मैक्सिमम possible advantage by way of getting the lowest rates, lowest competitive rates। competition होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए, इसलिए हम जाते हैं ओपन टेंडर्स के लिए। तो ओपन टेंडर्स की रिक्वायरमेंट क्या है? उसका मिनिमम टेंडर नोटिस होना चाहिए 30 दिन का। ओपन टेंडर्स का मिनिमम नोटिस पीरियड होना चाहिए 30 दिन का, और वो 30 दिन नोटिस पीरियड कैन आल्सो बी रिड्यूस्ड टू 21 days विदाउट फाइनेंस कंकरेंस, और फर्दर आपको 14 दिन भी नोटिस दे सकते हैं विद फाइनेंस कंकरेंस। ये रहा नोटिस पीरियड का। दूसरा क्या है? ओपन टेंडर्स बुलाने के वास्ते आपको IREPS में अपलोड करना है और पब्लिश करना है न्यूज़पेपर में। न्यूज़पेपर में पब्लिश भी करना, वी हैव टू पब्लिश इन द न्यूज़पेपर्स एज वेल एज वी हैव टू अपलोड इन द IREPS। अगर सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट है तो आप जेम में बुला सकते हैं, उस जेम में आपको पब्लिश करने की जरूरत नहीं है, जेम में आप अगर अपलोड करेंगे तो वो सफिशिएंट है, काफी है। ये हो गया पब्लिसिटी, नोटिस पीरियड हो गया, पब्लिसिटी हो गई। और पब्लिसिटी 30 दिन कब से देखेंगे हम? फ्रॉम द डेट ऑफ अपलोडिंग ऑन द IREPS और जेम। इसके बाद 21 days 30 days जो भी हैं वो होना चाहिए। ठीक है, ये दो चीजें हो गई। इसके एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस क्या है ओपन टेंडर्स के? हमें ट्रांसपेरेंसी मिलेगी, कॉम्पिटेंसी ऑफ कॉम्पिटिटिव रेट्स मिलेंगे, रेट्स का वेरी रीजनेबल मिलेंगे, और दूसरे नए लोगों को अब मौका दे रहे हैं। ये रहा ओपन टेंडर्स का एडवांटेजेस। इसमें लिमिटेशंस क्या है? ओपन टेंडर्स में क्या होता है, टाइम ज्यादा खींचता है टेंडर फाइनलाइज करने के लिए, 2 महीने 3 महीने। और क्या होता है, क्योंकि हमें 30 days नोटिस देना है, और उसके बाद फिर वो वेरिफिकेशन ये वो मिला के कम से कम 2 महीने हो, टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाता है, और पेपर एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्च अलग से हो जाता है। और तीसरा क्या है, आप सभी को मौका नहीं दे रहे, मतलब एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगा देते हैं 50 लाख के बाद, तो फिर कोई दूसरे लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो थोड़ा लिमिटेशन हो जाता है। लेकिन ये छोटे छोटे लिमिटेशंस रहने के बावजूद ओपन टेंडर्स इज द बेस्ट टेंडरिंग सिस्टम फॉर द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, बेस्ट टेंडरिंग सिस्टम, वी हैव टू गो फॉर ओपन टेंडर्स।
दूसरा टाइम है, दूसरा जो टाइप ऑफ टेंडर है लिमिटेड टेंडर्स। हमें ये याद रखना है, ओपन टेंडर्स मतलब IREPS में अपलोड हो गया, पेपर में एडवर्टाइजमेंट हो गया, ये ओपन टेंडर है। उसका फिर मैं जो नोटिस पीरियड भी 30 दिन होना चाहिए, और सब चीजें हमारे। लिमिटेड टेंडर्स क्या है? आपको पेपर में एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं, आपको IREPS में भी अपलोड करने की जरूरत नहीं है, नॉट मैंडेटरी। फिर इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए आपके पास एक अप्रूव्ड लिस्ट चाहिए। मतलब सी आप एक सीनियर ऑफिस है, तो सीनियर ऑफिस क्या करता है जनरली? वो बिल्डिंग वर्क्स बुलाता है, ब्लास्ट वर्क्स बुलाता है, वो बुलाता है, ट्रैक वर्क्स बुलाता है। So many tenders he'll be calling regularly tenders बुलाते रहते हैं। तो हर बार हम ओपन टेंडर्स करेंगे तो बहुत सारा खर्चा होगा, बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। तो बोर्ड गाइडलाइंस आर दैट यू कैन मेंटेन एन अप्रूव्ड लिस्ट। ब्लास्ट टेंडर्स के लिए 5 लाख के लिए, 50 लाख के लिए सॉरी अब तो 1 करोड़ है, 1 करोड़ तक के टेंडर्स के लिए एक लिस्ट, 1 to 5 करोड़ के लिए एक लिस्ट, 5 to 25 करोड़ के लिए ऐसा लिस्ट आप बना लीजिए। अप्रूव लिस्ट कौन बनाता है? वी हैव टू गिव दी पेपर एडवर्टाइजमेंट कॉलिंग एप्लीकेशंस फॉर अप्रूव लिस्ट। वो सभी लोग अप्लाई करेंगे, उसका एक क्राइटेरिया होगा, एक्सपीरियंस क्राइटेरिया होगा, उसका फाइनेंशियल क्राइटेरिया होगा। उसके बाद में उसको शॉर्टलिस्ट करेंगे कि भाई ये जो एजेंसी है ये काम कर सकती है रेलवे में, इस ब्लास्ट के लिए ये ठीक है, बिल्डिंग के लिए ये ठीक है, ट्रैक वर्क के लिए ये ठीक है। इस तरह आप अपनी अप्रूव्ड लिस्ट बनाएंगे। जब आपके पास अप्रूव्ड लिस्ट है तो आप लिमिटेड टेंडर्स जा सकते हैं। अगर अप्रूव्ड लिस्ट नहीं है तो लिमिटेड टेंडर्स जा नहीं सकते। तो अप्रूव्ड लिस्ट में भी कम से कम 10 लोग होना चाहिए। देयर शुड बी मिनिमम ऑफ 10 एजेंसीज इन द अप्रूव्ड लिस्ट। इफ यू डोंट हैव 10 एजेंसीज इन द अप्रूव्ड लिस्ट इज नॉट वैलिड। तो the requirement of limited tender is you must have an approved list, current approved list। ये एक बार अगर approved list बनाते हैं तो 3 साल तक करेंसी होती है उसकी। सो करंट approved list होनी चाहिए डिफरेंट कैटेगरीज में। और आपको इसमें नोटिस पीरियड देना है 14 दिन, 14 डेज नोटिस इज सफिशिएंट। और इसमें पेपर में एडवर्टाइजमेंट देने की जरूरत नहीं है, IREPS में भी अपलोड करने की जरूरत नहीं है। फिर क्या करना है? जो भी आपके पास अप्रूव्ड लिस्ट है उन लोगों को अपना जो टेंडर नोटिस है वो उनको भेजिए मेल से, और उनको भेजिए बाय पोस्ट से। और IREPS में एक प्रोविजन भी है, उसमें आप वो लिस्ट को अपलोड कर दीजिए, और आप इवन कॉल द टेंडर्स थ्रू IREPS आल्सो। बट उसके लिए आपको सेपरेट अपना जो अप्रूव्ड लिस्ट है उसमें अपलोड करना पड़ता है, एक प्रोविजन है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप उसमें फॉलो करें। अगर आपके पास अप्रूव्ड लिस्ट है तो आप डायरेक्टली टेंडर्स बुला सकते हैं, कर सकते हैं, मैनुअली भी कर सकते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या है लिमिटेड टेंडर्स के? ये तो क्या है, अपने पास जो साझे एजेंसीज अवेलेबल हैं, द कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्टर्स आर अवेलेबल, एंड वी कैन एक्सपेक्ट सम गुड वर्क फ्रॉम दीस फेलोज। ओपन टेंडर्स में जो नए लोग आते हैं और काम भी खराब करने के चांसेस होते हैं ओपन टेंडर्स में, whereas in the limited tenders we don't have that problem. All the people on the approved list are well versed, they can execute the work very competently. ये एक एडवांटेज है। और तीसरा एडवांटेज क्या है? आपको नोटिफिकेशन का खर्चा बच जाता है और टेंडर को जल्दी फाइनलाइज कर सकते हैं और आपके लिए अच्छा काम हो जाएगा थोड़े टाइम में। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है कि जो रेट्स हैं वो ओपन टेंडर से थोड़ा ज्यादा हो सकते हैं। The rates obtained through limited tenders may be higher than the open tenders because there is no huge competition here. The competition is only between the approved list. इसमें और एक भी प्रॉब्लम है, सपोज मान लो अप्रूव्ड लिस्ट छोटी है, 15-20 लोग ही है, ज्यादा लोग नहीं है। तो अगर आप एक साथ 20-30 टेंडर बुला रहे हैं तो ये उसका एक ग्रुपिंग बन जाता है, भाई आप ये टेंडर लो, मैं ये टेंडर लूंगा। इसमें आपका जो ग्रुपिज्म बन जाता है, उसमें आपको ज्यादा रेट आने के भी चांसेस रहते हैं, बहुत कम है होते हैं। सो दिस इज अबाउट द लिमिटेड टेंडर्स। लिमिटेड टेंडर्स कैन बी इनवाइटेड ओनली व्हेन यू हैव एन अप्रूव्ड लिस्ट, करंट अप्रूव्ड लिस्ट। You need to give at least 14 days notice. You have to send the notices to all the people on the approved list, either through mail, through post,
or we can also use the IREPS platform for sending these notices to only these people. All others are not allowed to participate. Only the people who are on approved list only can participate in this. Advantages, we have very ready-made experienced contractors, and we can expect good results from these experienced people. Cartel formation is one problem in this approved list, but very rare. When you invite so many tenders and you have a limited number of agencies, then there is a cartel formation. Cartel also apne baat lena. So this is limited tenders. Then we have special limited tenders. Special limited tenders is slightly different. इसके लिए ओपन टेंडर्स हैं, लिमिटेड टेंडर देख लिया हमने क्या चीज है. स्पेशल लिमिटेड टेंडर क्या चीज है? ये बहुत ही टेक्निकल वर्क है. आपको ब्रिज बना रहे हैं, बहुत बड़ी ब्रिज बना रहे हैं, टनल खोद रहे हैं और मेजर ब्रिज है रिवर पे, और जो हिमालय में आप एक ब्रिज बना रहे हैं बड़ी, तो इसको सब एवरीबडी इज नॉट एनी कॉम्पिटेंट टू डू दिस वर्क्स. उसके लिए बहुत सारी स्किल होना पड़ता है, उसके लिए बहुत सारा टर्नओवर, इसके लिए बहुत सारे प्लांट एंड मशीनरी एक्सपीरियंस होना पड़ता है. तो सच हाईली टेक्निकल वैल्यू ऑफ हाईली टेक्निकल नेचर ऑफ वर्क्स वी गो फॉर स्पेशल लिमिटेड टेंडर. ठीक है, तो इसके लिए क्या जरूरत है? स्पेशल लिमिटेड टेंडर के लिए अप्रूवल लिस्ट की जरूरत नहीं है. आप पेपर में एडवर्टाइज नहीं देंगे, कुछ नहीं करेंगे. इसको क्या करेंगे? पहले लिस्ट आउट करेंगे कौन ये काम कर सकता है, हु कैन डू दिस वर्क. L&T, ओके ठीक है, L&T कर सकता है, और एक दूसरा गामा इंडिया, वो भी कर सकता है. ऐसा वी हैव सम एजेंसीज इन इंडिया हु कैन डू दिस वर्क. तो हम करेंगे 15-20 लोगों का लिस्ट बनाएंगे, बना के हम अप्रूवल लेंगे, कंकरेंस लेंगे, उसके बाद में हम टेंडर उन्हीं में से बुलाएंगे, उन्हीं लोगों में से टेंडर बुलाएंगे. बाय वे आप ईमेल करेंगे, तो पर्सनली पोस्ट को भेजेंगे उसको, और उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं होता है. हमने ऑलरेडी उसको शॉर्टलिस्ट किया है, हमने अप्रूवल लिया है, कंकरेंस लिया है, उसके बाद में हम टेंडर्स उन्हीं में से बुलाएंगे. दिस इज कॉल्ड स्पेशल लिमिटेड टेंडर. जो लिमिटेड टेंडर्स के जो एडवांटेजेस है इसमें भी वही है स्पेशल लिमिटेड टेंडर, बिकॉज यू ऑलरेडी शॉर्टलिस्टेड देम. You know that this man, this agency can do your work very qualitatively. So this is called special limited. ठीक है. So open tenders हो गया, limited tenders from approved list हो गया, special limited tender. Special limited, अभी इसमें दो तीन चीजें याद रखना है हमारे को कि limited tenders can be invited only when you have an approved list. Special limited tenders can be invited only when it is highly technical works, where very few agencies available in all over India in the market. Okay, that is what. Then we have single tender. Single tender में क्या है? We don't have any time. Open tender हमारे पेपर में एडवर्टाइज देने की टाइम नहीं है, हमारे पास अप्रूवल लिस्ट नहीं है, हमारे पास ये जो स्पेशल लिमिटेड टेंडर का प्रोसेस करने का टाइम भी नहीं है. अर्जेंट वर्क है, गाड़ी डिरेल हो गई, फ्लड्स आ गए, ट्रैक डूब गया, बह गया, तो हमें रेस्टोरेशन करना है, ट्रैक रेस्टोरेशन करना है, कम्युनिकेशन रेस्टोरेशन करना है. जब हम क्या करते हैं, जो भी अवेलेबल उस एरिया में जो भी एजेंसी है उसको बोलते हैं भाई आप ये काम को अंजाम दो, फटाफट शुरू करो. मतलब उसको सिंगल, मतलब जो भी अवेलेबल है, जो भी कॉम्पिटेंट है अवेलेबल, उसको बोलेंगे आप काम करो. पहले वो काम करेगा, उसके बाद में शेड्यूल देगा, उसके बाद में टेंडर बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, साइन बनेगा, उसके बाद में बिल पास होते रहेगा. तो इसमें एडवांटेज क्या है? फटाफट हम टेंडर फाइनलाइज कर सकते हैं. इसके डिसएडवांटेज क्या है? इसमें जो पार्शियलिटी हो सकती है, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, और रेट भी वो मुंह मांगे दाम देना पड़ता है उसको, क्योंकि उसको बहुत सारे कंडीशंस में काम करना पड़ता है, इसलिए उसको मुंह मांगे दाम देना पड़ता है. ये दिस इज कॉल्ड सिंगल टेंडर. ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंडर. ये पहले प्री वेटिंग ऑफ टेंडर शेड्यूल में ये कॉन्सेप्ट क्या है? आपको टेंडर बुलाने से पहले आपका सैंक्शन डिटेल एस्टिमेट होना चाहिए. अगर मान लो सैंक्शन डिटेल एस्टिमेट नहीं है तो आप टेंडर नहीं बुला सकते. तो क्या करेंगे, कभी थोड़ा टाइम लग रहा है डिटेल एस्टिमेट बनना है, लेकिन एक काम ऐसा है उसको करना बहुत जरूरी है, उसके बाद हम दूसरा काम कर सकते हैं. तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, टेंडर शेड्यूल को फाइनेंस के द्वारा वेट करा के टेंडर बुलाते हैं. बिफोर द एस्टिमेट इज सैंक्शन, we can invite a tender duly pre-waiting the tender schedule prior to the sanction of the detail estimate. बहुत सारे कम होते हैं, अर्जेंट वर्क अगर हो तो
ठीक है. So these are the various types of tenders. तो हमने ये देखा है डिस्पेंसेशन में मॉनेटरी वैल्यूज देखा है और इसका रिक्वायरमेंट भी देखा है. सिंगल टेंडर में अपार्ट फ्रॉम रेस्टोरेशन ऑफ ट्रैक, देखते हैं इसमें हमारे सतीश हिमांशु ने एक क्वेश्चन किया है कि इज SLT 2 इनवाइटेड फ्रॉम अप्रूव्ड लिस्ट. जब आपके पास अगर अप्रूव्ड लिस्ट है तो SLT की क्या जरूरत है? अप्रूव्ड लिस्ट है तो आप लिमिटेड टेंडर बुलाइए सीधा सीधा. SLT जब बुलाते हैं जब आपके पास अप्रूव्ड लिस्ट नहीं है. इफ यू डोंट हैव एन अप्रूव्ड लिस्ट देन ओनली यू विल गो फॉर SLT. यू डोंट हैव एन अप्रूव्ड लिस्ट बट द वर्क इज वेरी हाईली टेक्निकल वर्क, देन ओनली यू गो फॉर SLT. It is not necessary that SLT 2 invited from approved list. It is not correct. When you have an approved list, then you can go ahead with the tender, limited tender. ठीक है. इसमें और एक भी पूछा है, व्हाट इज द बेंचमार्क और L1, L2, L3. बेंचमार्क कुछ नहीं होता है. आपका जो एस्टिमेटेड कास्ट होता है, जब कोटेशन बुलाते हैं, टेंडर बुलाते हैं, आपका जो एस्टिमेटेड कास्ट होता है वही बेंचमार्क होता है. एस्टिमेटेड कास्ट, टेंडर कास्ट, जो टेंडर कास्ट उसमें आपने लिखते हैं कि हमारा जो एस्टिमेटेड कास्ट है इतना है, दैट इज द बेंचमार्क फॉर डिसाइडिंग द L1. मान लो आपका बेंचमार्क है, जो टेंडर है आपका मान लो 1 करोड़ का है, 1 करोड़ 10 लाख का टेंडर है, तो उसका बेंचमार्क वही है. द टेंडर कास्ट इज द बेंचमार्क. ठीक है. उसके ऊपर L1 5%, 10%, depending on the nature of work, depending on the circumstances. The accepting authority can decide, okay, can I give more than 10%, can I give more than 20%, like that they can. ठीक है. तो हम आएंगे फिर सिंगल टेंडर केस में. सिंगल टेंडर के जनरली क्या होता है, जो रेस्टोरेशन ऑफ ट्रायल, रेस्टोरेशन ऑफ कम्युनिकेशन होता है, बट सिंगल टेंडर कैन आल्सो बी इन्वाइटेड फ्रॉम दी OEMs, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स. मान लो एक मशीनरी हमें दी गई, यानी सोफिस्टिकेटेड मशीनरी है, दी गई हमें, तो उसके लिए मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है. सो मेंटेनेंस के लिए फिर हमें ओपन टेंडर बुलाने की जरूरत नहीं है, हम सिंगल टेंडर बुला सकते हैं OEM से. दिस इज आल्सो वेयर यू कैन इनवाइट ए सिंगल टेंडर. सो सिंगल टेंडर कैन बी इनवाइटेड फॉर रेस्टोरेशन ऑफ ट्रैक, रेस्टोरेशन ऑफ कम्युनिकेशन, इमरजेंसी वर्क्स, for maintenance works from the OEMs and any other situation as decided by the general manager. ठीक है. तो इसमें जब OEM से टेंडर बुलाते हैं लोग, हमारे पास क्या करते हैं, ठीक है, फॉर ओपन टेंडर्स व्हाट इज द मिनिमम. किसी ने पूछ रहा है, किसी ने मैसेज किया है कि व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट फॉर ओपन टेंडर. ऐसा कुछ नहीं है. There is no minimum amount for open tenders. Generally, जब अगर विदिन कोटेशन पावर्स हैं 10 लाख के अंदर हैं तो कोटेशन बुला लेते हैं. 2-3 लाख को भी ओपन टेंडर बुला सकते हैं if there is no urgency. If there is no urgency, there is no quotation. You can go for open tender as well. So there is no limitation for approved, for limited tenders, for open tenders. ऐसा कुछ नहीं. ये वैल्यू के हम लिमिटेड टेंडर्स बुलाएंगे, ये वैल्यू के हम ओपन टेंडर बुलाएंगे, इस तरह कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. लेकिन जब कोटेशन बुलाते हैं, इट शुड बी लेस देन 10 lakhs. ठीक है. सो सिंगल टेंडर्स फ्रॉम OEMs नीड नॉट बी कॉल्ड थ्रू IRBS. IRBS में बुलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिंगल टेंडर है, आप डायरेक्टली उनसे जो EM से आप कोटेशन ले सकते हैं. जनरली EMD नहीं पूछना चाहिए, परफॉर्मेंस गारंटी नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि बोर्ड ने डिस्पेंसेशन दिया है, क्योंकि वी हैव टू डिपेंड ऑन दोस पीपल, वी हैव टू डिपेंड ऑन दी OEMs. अगर वो नहीं है तो फिर हमारा मशीन डगमगाएगा, दूसरे लोग नहीं कर सकते उसको. तो इसलिए उसको EMD, PG कुछ नहीं करेंगे. अगर एडवांस पेमेंट दे रहे हैं तो परफॉर्मेंस गारंटी ले लेंगे. ठीक है. तो हमने देखा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंडर्स.
कौन से टेंडर्स देखे हैं हम, कैसे डिस्पेंसेशन कैसा होता है। तो एक रिक्वायरमेंट हम पहले भी देखे थे कि जनरल कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एक टेंडर बनाने के लिए जनरल कंडीशंस को फिक्स करना पड़ता है, जनरल कंडीशंस को अडॉप्ट करना पड़ता है। अगर एग्जीक्यूशन वर्क है तो जीसीसी फॉर वर्क्स एप्लीकेबल होगी, अगर सर्विसेज हैं, आउटसोर्सिंग है, जीसीसी फॉर सर्विसेज एप्लीकेबल। तो इसमें थोड़े अलग अलग ईएमडी, बिड सिक्योरिटी, ये सब चीजें हैं, हम उसके बारे में वर्क्स में किस तरह होती है और सर्विसेज में किस तरह होती है, हम उसको डिस्कस करते हैं। जीसीसी फॉर वर्क्स में क्या होता है, जो रेट ऑफ ईएमडी सेम है, 2% रहेगा अप टू 1 करोड़, उसके बाद रहेगा 0.5%, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1 करोड़ ईएमडी रहेगा। तो जीसीसी फॉर वर्क्स में जो है इसको राउंड ऑफ करते हैं 100 तक, सर्विसेज में इसको राउंड ऑफ करते हैं ओनली 10, नेक्स्ट 10 रुपीज को सर्विसेज में राउंड ऑफ करते हैं, वेराज वर्क्स अगर है तो ये 100 रुपीज को राउंड ऑफ होता है। ठीक है, एक और एक क्वेरी आई है, किसी ने, हमारे सुमित जी पूछ रहे हैं कि वेदर पीएससी इज मैंडेटरी फॉर सिंगल टेंडर और फॉर वर्क्स। तो पीएससी मैंडेटरी नहीं है सिंगल टेंडर के लिए। सिंगल टेंडर के पीएससी क्या होती है, ओईएम पीएससी होती है जब प्रोक्योरमेंट के लिए, वर्क्स के लिए नहीं। पीएससी इज नॉट एप्लीकेबल, पीएससी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर वर्क्स। द वर्क्स विल बी अवॉर्डेड ऑन सिंगल टेंडर बेसिस ओनली इन two occasions. One is emergency, extreme emergency, for restoration of track communication. The second is for the AMCs from OEM. दूसरा कोई पीएससी नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें जो जीसीसी फॉर वर्क्स में है, इसमें स्टार्टअप रजिस्टर्ड विद डीप पीएसयूज आर एग्जम्प्टेड, उनके पास से ईएमडी लेने की जरूरत नहीं है। इसमें जो सर्विसेज में स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड विद डीप, ये एग्जम्प्ट है। इसमें और एक भी कंडीशन है जीसीसी फॉर वर्क्स में, 50% एग्जम्पशन फॉर रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये इसमें कुछ नहीं है, इसमें कैन बी एग्जम्प्टेड बेस्ड ऑन द ऑप्शन। जो रिसेंट जो ऑर्डर्स हैं, EMD can be exempted. Bid security, EMD is nothing but bid security. Bid security can be exempted based on a declaration. IREBS में एक ऑप्शन है, उसमें डिक्लेरेशन होता है। वो डिक्लेरेशन करेंगे कि भाई मैं अभी नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन मेरा काम जो भी है, आप जो भी असाइन करेंगे मैं पक्का करूंगा, अगर नहीं करे तो मेरे को बैन किया जाए, ऐसा एक डिक्लेरेशन है। तो बिड सिक्योरिटी डिक्लेरेशन हम उसमें देंगे। This is applicable up to 31/12/2021 because of the COVID situation in India. Otherwise, this is not applicable. किसी ने एक क्वेश्चन किया है कि प्री वेटिंग क्या चीज होती है, प्री वेटिंग ऑफ टेंडर शेड्यूल। जनरली क्या होता है, अगर पहले ऐसा होता था, फॉर इन्वाइटिंग ए टेंडर शेड्यूल यूज्ड टू बी वेटेड, टेंडर शेड्यूल यूज्ड टू बी वेटेड कंपल्सरीली, उसके बाद ही टेंडर बुलाते थे। लेकिन बीच में रेलवे बोर्ड ने क्या किया, भाई आपने तो डिटेल एस्टिमेट वेरीफाई कर रहे हैं ना, तो फिर इसको वेरिफिकेशन करने की क्या जरूरत है। सो यू कैन डिस्पेंस विद वेटिंग ऑफ टेंडर्स प्रोवाइडेड देयर इज अ सैंक्शन एस्टिमेट। अगर सैंक्शन एस्टिमेट है तो टेंडर शेड्यूल की वेटिंग जरूरत नहीं है। अगर सैंक्शन एस्टिमेट नहीं है और वर्क अर्जेंट है, टाइम लग रहा है, तो जो टेक्निकल प्रिपरेशन में जो टाइम लग रहा है, तो आप टेंडर बुला सकते हैं विद प्री वेटिंग ऑफ टेंडर शेड्यूल। दैट इज कॉल्ड प्री वेटिंग ऑफ टेंडर शेड्यूल। ये परफॉर्मेंस गारंटी आपने पहले तो देखा है, ईएमडी व्हाट इज ईएमडी, बिकॉज देयर मे बी अ क्वेश्चन इन in the examination. What is an EMD? EMD is an earnest money deposit which is collected to safeguard the interest of the railways in case the agency fails to keep up his offer. Tender is what? Tender is nothing but an offer. So to keep up his tender, to keep up his promise, to keep up his offer open, we will collect some amount. मान लो अगर वो अमाउंट इसलिए लेते हैं हम कि अगर वो भाग गया, अगर काम नहीं दिया, नहीं टेकअप करा, अगर वो विड्रॉ कर दिया अपना ऑफर, तो हम उसको ईएमडी को उसको फॉरफिट करते हैं। इसलिए टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द रेलवेज वी टेक द ईएमडी, दैट इज कॉल्ड ईएमडी। ईएमडी
सबके लिए भी लेते हैं, ईएमडी लेते हैं हम ओपन टेंडर में, लिमिटेड टेंडर में, स्पेशल लिमिटेड टेंडर में। पुराने जमाने में एसीएमडी होता था, जो अगर अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स हैं तो वहाँ स्पेशल ईएमडी होता था। लेकिन ईएमडी किस फॉर्म, one form or the other form, it is available, and we collect the EMD for all types of tenders except some exemptions are there. अभी जो आपका जो वही हमसे हम सिंगल टेंडर बुला रहे हैं, वहाँ EMD की जरूरत नहीं, क्योंकि हम उसी पे डिपेंड करना है, एक पे ही डिपेंड करना है। दैट इज कॉल्ड EMD। व्हाट इज SD? SD इज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। EMD कब तक काम आता है? EMD कब तक काम आता है? टेंडर बुलाए हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, वहां तक EMD काम आता है। उसके बाद में उसको परफॉर्मेंस गारंटी देना पड़ता है कि कॉन्ट्रैक्टर को वो परफॉर्मेंस गारंटी देना पड़ता है कि सर आपने मुझे काम दिया है, तो आपके जो लेटर एक्सेप्टेंस के हिसाब से मुझे 5% कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आपको परफॉर्मेंस गारंटी देना है। तो मैं बैंक गारंटी फॉर्मेट में आपको परफॉर्मेंस गारंटी दे रहा हूँ, और आप मेरे से अग्रीमेंट साइन करवाइए। तो परफॉर्मेंस गारंटी ले आएगा। परफॉर्मेंस गारंटी में क्या लिखा होता है कि भाई जो भी काम मुझे दिया जा रहा है मैं वो सक्सेसफुली बराबर टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से करूंगा। उसके बाद मान लो अगर मैं नहीं कर पाऊंगा तो फिर मेरा परफॉर्मेंस गारंटी आप फॉरफिट कर सकते हैं। इस तरह उसका डिक्लेरेशन होगा उसमें। सो वी विल टेक दैट परफॉर्मेंस गारंटी, वी विल साइन द कॉन्ट्रैक्ट एंड ही कैन स्टार्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क। ठीक है, किसी ने पूछा है कि वेटिंग, कंकरेंस, वेरिएशन, इनिशिएशन में क्या फर्क है, हम बताएंगे उसको। ठीक है, बाद में बताएंगे। तो ये रहा, हाँ हमने ईएमडी देखा है और हमने बिड सिक्योरिटी देखा है। ईएमडी बिड सिक्योरिटी वन एंड द सेम। सिक्योरिटी डिपॉजिट, परफॉर्मेंस गारंटी देखा है। परफॉर्मेंस गारंटी में हम उसको 5% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू लेते हैं उसके पास, ताकि वो अपना काम सही ढंग से कर सके। अगर वो काम नहीं कर पा रहा है, काम छोड़ के गया है, तो हम उसको परफॉर्मेंस गारंटी को भी इनकैश करते हैं। इसके बाद और एक डिपॉजिट होती है तो सिक्योरिटी डिपॉजिट। अगर वर्क्स में क्या होता है, वर्क्स में हम जैसा जैसा प्रोग्रेस होता है 5% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू वी विल कीप एज द सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट किस लिए रखते हैं? मान लो वो काम करते जा रहा है, उसके लिए परफॉर्मेंस गारंटी दिया, ठीक है, लेकिन काम करने के बाद उसका जो मेंटेनेंस पीरियड होता है उसमें अगर कोई दिक्कत आई तो हम बोलेंगे भाई आप इसको सीधा करो, नहीं तो आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट हमारे पास है, डिपॉजिट हमारे पास है। हम जैसा हम किराए पे जाते हैं इसमें फ्लैट्स में, तो एसडी पूछता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट पूछता है। क्यों पूछता है? कि भाई आप घर में आप रहेंगे, सही तरह इस्तेमाल नहीं करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, तो आपके एसडी में से वो पकड़ लेगा, पैसे पकड़ लेगा, उसकी यानी अमाउंट पकड़ लेगा। उसी तरह हम सिक्योरिटी डिपॉजिट हम कलेक्ट करते हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट में से 5% हमारे पास होता है। वो जैसा काम खत्म होने के बाद, मेंटेनेंस पीरियड कंप्लीट होने के बाद, अगर कुछ भी डैमेजेस नहीं है तो हम उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट रिटर्न करते हैं। तो ईएमडी हो गया, सिक्योरिटी डिपॉजिट हो गया, परफॉर्मेंस गारंटी हो गया। ये तीन भी आपको पढ़ना जरूरी है, याद करना जरूरी है, समझना जरूरी है, क्योंकि बिग क्वेश्चंस में आ सकते हैं। ठीक है, और ईएमडी कितना परसेंटेज है हमने इससे पहले देखा। ठीक है, उसके बाद परफॉर्मेंस गारंटी। परफॉर्मेंस गारंटी जीसीसी फॉर वर्क्स के लिए, मान लो परफॉर्मेंस गारंटी कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज हो गया, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इश्यू कर दिया गया उसको, तो उसको कम से कम 5% ऑफ द परफॉर्मेंस गारंटी देना पड़ेगा, 21 दिन में देना पड़ेगा। अगर 21 दिन में नहीं दे पा रहा है तो उसको थोड़ा एक्सटेंशन दे सकते हैं। कब तक दे सकते हैं? 60 दिन तक एक्सटेंशन दे सकते हैं, लेकिन वो 12% पेनल इंटरेस्ट लगेगा उसको। यहाँ पर जब सर्विसेज में आएंगे तो 10% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू विद इन 30 डेज, वो 30 दिन तक दे सकता है। यहाँ पर 5% था, यहाँ पर 10% है सर्विसेज में। यहाँ पर आपको 12% इंटरेस्ट लग रहा है, यहाँ 10%। थोड़े डिफरेंसेस हैं इसमें, जो सर्विसेज जीसीसी कॉन्ट्रैक्ट, जो टेंडर फॉर सर्विसेज और टेंडर फॉर वर्क्स में जो डिफरेंसेस है। इसमें और एक चीज क्या है, अभी जो परफॉर्मेंस गारंटी है 5% और 10% उसको रिड्यूस कर दिया गया है ड्यू टू पैंडेमिक, इट इज रिड्यूस टू 3%। तो इन चीजों की आपको जरूरत नहीं है। बाकी का नो एडिशनल पीजी, अबनॉर्मलिटी ऑफ द रेट। सपोज कोई रेट, हमारा रेट था 100 लाख, किसी ने 70 लाख में उसको कोट कर दिया है, और वो तो अनवर्केबल है, लेकिन हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट वो सही किया होगा, स्टडी किया होगा। तो उन चीजों में अगर अबनॉर्मलिटी ऑफ द रेट अगर होंगे तो हम एडिशनल पीजी मांगते थे,
अब उसको मांगने की जरूरत नहीं है बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक। सिक्योरिटी डिपॉजिट वर्क्स में 5% है और जो सर्विसेज में 10% है। नो एसडी, सॉरी, जो एसडी है वर्क्स में 5% है। इसमें जीसीसी फॉर सर्विसेज में एसडी नहीं होती है, यहाँ पर परफॉर्मेंस गारंटी 10% होती है। वहां पर परफॉर्मेंस गारंटी 5% थी, यहाँ पर परफॉर्मेंस गारंटी 10% है, इसलिए यहाँ पर एसडी नहीं है। और अगर वो सही टाइम पे नहीं कर रहा है तो उसका जो एसडी है उसको फोरफिट कर सकते हैं। जो forfeiture of performance guarantee is not linked to the quantum of LD, whereas on the services side, if the maximum quantum of LD exceeds 50% of the maximum applicable LD, 25% of the performance guarantee उसको रिकवरी करते हैं। तो ये थोड़े जीसीसी के डिफरेंसेस हैं, हम इसको फिर बाद में फिर और एक बार देखते हैं, ठीक है। इसमें टू पैकेट सिस्टम टेंडरिंग क्या चीज होती है? टू पैकेट सिस्टम टेंडरिंग, टू पैकेट सिस्टम टेंडरिंग हमने देखा, ओपन टेंडर, लिमिटेड टेंडर, स्पेशल लिमिटेड टेंडर और सिंगल टेंडर देखा। फिर व्हाट इज टू पैकेट सिस्टम टेंडरिंग? जब ओपन टेंडर में, ओपन टेंडर, दिस इज अप्लाइड ओनली इन केस ऑफ ओपन टेंडर्स। टू पैकेट सिस्टम ऑफ टेंडरिंग इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द ओपन टेंडर्स वेयर सम क्राइटेरिया इज स्टेपुलेटेड, ठीक है। तो इसमें क्या चीज होती है? वाई टू पैकेट? जनरली एक सिंगल पैकेट ही होता है, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन सब चीजें होती हैं, उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो सभी मिला के अपना जो रेट मिला के एक ही कवर में डाल के ड्रॉप कर देगा। लेकिन टू पैकेट में अलग होता है, एक्सपीरियंस, फाइनेंशियल क्राइटेरिया, टेक्निकल एबिलिटी, सभी चीजें एक पैकेट में होती हैं। दैट इज कॉल्ड द टेक्निकल ऑफर, दैट इज कॉल्ड द कमर्शियल ऑफर। दूसरा जो फाइनेंशियल ऑफर होता है उसमें खाली रेट डालते हैं, उसमें खाली रेट डालते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, टेक्निकल पैकेट खोलते हैं ओपन टेंडर में, उसको देखते हैं कि जो टेक्निकल जो एक्सपीरियंस है, जो उसका जो फाइनेंशियल कैपेसिटी है, वो हमारे जो कंडीशन से मीट होता है नहीं। if they fulfill the criteria, if they fulfill the terms and conditions, if they fulfill the eligibility criteria, then we'll shortlist them, उसको शॉर्टलिस्ट करेंगे। मान लो 10 लोग पार्टिसिपेट किए हैं, उसमें से 6 लोग ही हमारे जो टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं, तो हम 6 लोगों को शॉर्टलिस्ट करेंगे। शॉर्टलिस्ट करने के बाद जो उनका फाइनेंशियल ऑफर है, हम सभी 10 का ओपन नहीं करेंगे, और जो भी शॉर्टलिस्ट हुए हैं उन्हीं का ओपन करेंगे। बाकी का जो 4 बिड्स हैं, फाइनेंशियल बिड्स हैं, उसको रिटर्न कर देंगे, उसको वापस करेंगे। जो भी अनसक्सेसफुल जो एजेंसीज हैं, जो those who cannot make it to 6, those who could not qualify in the packet 1, we will return the financial offers to them. So this is called two packet system. क्यों two packet system करना है? इसलिए करना है कि जनरली हम जब टेंडर्स, ओपन टेंडर्स खोलते हैं, तो L1 जो लोएस्ट होता है, हम उस पर अटक जाते हैं। हम उसको बाईपास करने के लिए बहुत दिक्कत होती है। मान लो हमारे पास 100 लाख का एक टेंडर था, 80 लाख किसी ने कोट किया और दूसरा कोट किया 1 करोड़ 10 लाख कोट किया, तो डिफरेंस ज्यादा है। तो हमारा मान लो वो टेक्निकली क्वालिफाइड नहीं है, फिर भी हम वहीं अटकते हैं। तो विदाउट सी द आइडिया ऑफ द टू पैकेज सिस्टम ऑफ टेंडरिंग इज दैट you must finalize the tender without getting influenced by the financial offers. That is the prime idea of the two packet system of tendering. If you finalize these tenders without getting influenced by the financial offer, then it will be very advantageous. किसी को दिक्कत नहीं है, तो इसलिए two packet system of tendering is adopted. तो ये जो works में this is applicable for more than 10 crores, whereas in services this is applicable for more than 50 lakhs. अगर 50 लाख के ऊपर है सर्विसेज में, ये टू पैकेट सिस्टम टेंडरिंग करना है। ये वर्क्स में मोर देन 10 करोड़ अगर है तो टेंडर करें। इसको भी रिलैक्स कर सकते हैं, इसको भी रिलैक्स कर सकते हैं। PHODs have been given powers, यहाँ पर जो सर्विसेज में PHODs can have been given powers to relax this eligibility criteria for the two packet system of tendering. So two packet system of tendering मान लो जरूरत नहीं है तो इसको रिलैक्स भी कर सकते हैं। तो इसमें जो टेंडर नोटिस होती है, टेंडर नोटिस नॉर्मली जो नोटिस पीरियड फॉर ओपन टेंडर्स, नोटिस ऑफ मिनिमम 30 days फॉर लार्ज वैल्यू वर्क्स ऑफ 2 crores फ्रॉम द डेट ऑफ अपलोडिंग ऑफ NIT ऑन द IREPS। जो टेंडर नोटिस है, किस दिन से हम देखा जाते हैं, किस दिन से काउंट करते हैं? फ्रॉम द डेट ऑफ अपलोडिंग ऑन द NIT, 30 days होना चाहिए।
लेकिन अगर वैल्यू ऑफ द वर्क्स 1 करोड़ है तो 21 डेज भी लग सकते हैं विदाउट फाइनेंस कंकरेंस, 14 डेज लग सकते हैं विद फाइनेंस कंकरेंस, एंड टेंडर्स नीड टू बी अपलोडेड ऑन IRPS and published in the newspapers. Date of publication of the NAT on the IRPS is the criteria. ऐसा नहीं कि टेंडर नोटिस, जो टेंडर नोटिस है पेपर में एडवर्टाइजमेंट हो रहा है उस दिन से नहीं है, जो नोटिस इनवाइटिंग टेंडर है NAT जो अपलोड हो रहा है उस दिन से 30 दिन होना चाहिए, उस दिन से 21 दिन होना चाहिए. दिस इज द क्राइटेरिया. अगर मान लो corrigendum is what? Corrigendum is nothing but a correction slip. हमने अपने कोड्स को करेक्शन स्लिप इश्यू करते हैं, MSOP को एक करेक्शन स्लिप इश्यू करते हैं. मानो एक टेंडर को corrigendum देना है, उसमें मान लो थोड़ा अमाउंट बढ़ गया, थोड़ा वर्क कट हो गया, थोड़े कंडीशंस आ गए, थोड़ा टाइम बढ़ा दिया गया, इन सभी चीजों को corrigendum द्वारा इश्यू किया जाता है. सो corrigendum जब इश्यू करते हैं उस दिन के बाद 15 डेज नोटिस देना बहुत जरूरी है. मान लो अभी 30 डेज अपन पहले नोटिस दिया, फिर 25वें दिन 25th डे वी हैव गिवन दी corrigendum. So from 25th day another 15 days have to be added, so the total notice period will be 40 days. इन चीजों को भी ध्यान में रखना है. ठीक है, अब देखो अभी जो टेंडर्स हम बुलाते हैं, ओपन टेंडर्स बुलाते हैं. ओपन टेंडर्स बुलाने के पहले हमने EMD फिक्स कर दिया, हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट फिक्स कर दिया, हमने परफॉर्मेंस गारंटी फिक्स कर दिया, पूरे दूसरे 10 कंडीशंस फिक्स कर दिया. हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी फिक्स करनी है. तो वर्क्स के साथ जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, टेंडर्स फॉर वर्क्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसमें 3 किस्म का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है. मतलब उसको कम से कम गुजरे 7 साल में, during last 7 financial years, he should have done at least one work valuing 60% of the tender value, or 2 works of 40% of the tender value, or 3 works of the 30% tender value he should have done during last 7 years. अगर ऐसा कुछ काम किया होगा तो he is eligible to participate in this tender. मान लो एक क्राइटेरिया अगर एक्सपीरियंस क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता है तो he is not eligible to participate in the tender for the more than 50 lakhs. वर्ष के लिए more than 50 lakhs के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है. सर्विसेज में इसमें more than 50 lakhs नहीं है, it is applicable right from the zero value. लेकिन जो परसेंटेज है वो अलग है. इसमें क्या होता है, वो सिंगल जो पुराना जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता था, 1 work of 35% of the value of the tender during last 3 financial years. वहां पर 7 financial years, यहाँ पर 3 financial years. वहां पर 1 पर 60%, 2 works 40%, 3 works 30%. यहाँ पर 35% of the value of the work during last 3 financial years. ये चीजें होनी चाहिए टेंडर पार्टिसिपेशन के लिए. तो एक सजेशन हो सकता है, लेकिन सजेशन आपके लिए जरूरत नहीं है. इट इज बेटर टू कीप द क्राइटेरिया फॉर द वैल्यू. इसके जो ओपन टेंडर जो हमारा वर्क्स में जो मोर देन 50 lakhs का है, उसके लिए हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखते हैं. उसी तरह सर्विसेज में होना चाहिए. हम इसको सजेशन दे सकते हैं अगर कहीं मांगा गया, कहीं पूछा गया. ठीक है. जो एक्सपीरियंस क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 2 चीजें होती है, एक्सपीरियंस क्राइटेरिया, एक टर्नओवर क्राइटेरिया. एक्सपीरियंस क्राइटेरिया हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, ये एक्सपीरियंस क्राइटेरिया. अब देखते हैं टर्नओवर क्राइटेरिया. टर्नओवर क्राइटेरिया में वर्क्स में क्या है, 50% of the advertisement tender value during last 3 financial years. 3 financial years में 150% होना चाहिए, और ये more than 50 lakhs के लिए applicable है. सर्विसेज में क्या है, यहाँ पर भी 150% during last 3 financial years होना चाहिए उसका टर्नओवर. टर्नओवर आपको पता है, उसका जो कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट जो रिसीव करता है during last 3 financial years, वो 150% होना है. उसके अतिरिक्त क्या होना चाहिए, 5% लिक्विडिटी टर्नओवर भी होना चाहिए. लिक्विडिटी टर्नओवर तो उसका हार्ड कैश इन द बैंक, फिक्स्ड डिपॉजिट इन द बैंक, और ड्राफ्ट इन द बैंक, उसको 5% होना चाहिए. ठीक है. तो ये सर्विसेज, ये आउटसोर्सिंग के लिए, ये वर्क्स के लिए. सो पावर्स हैव बीन गिवन टू DHO, DRM को पावर्स दिए गए हैं कि भाई आप इसको करेक्शन कर सकते हैं, इसको कम ज्यादा कर सकते हैं. इट इज बेटर टू कीप द क्राइटेरिया फॉर द टेंडर वैल्यू मोर देन 50 lakhs. जैसे कि अब वर्क्स में है उसी तरह इसको भी रखना चाहिए. इसमें जो GST एप्लीकेबल है वर्क्स के लिए 12% है. दिस इज इंक्लूडिंग इन द रेट.
इसका जो रेट हम मांगते हैं, मान लो हम एक आइटम मांगते हैं, इसका भाई इसका रेट हमारा होता है 100 रुपये, और 120 रुपये कोट करेगा. So whatever rate is quoted, whatever rate is asked, inclusive of the 12% GST. सर्विसेज में ऐसा नहीं होता. सर्विसेज में ओवर एंड अबव द रेट एक्सेप्टेड हमें 10-18% सर्विसेज GST देना चाहिए. दिस इज डिफरेंस. ठीक है. इसमें प्राइस वेरिएशन है. प्राइस वेरिएशन इसमें एप्लीकेबल है मोर देन 5 crores के लिए. सर्विसेज में इट इज एप्लीकेबल फॉर if the contract is more than 18 months. अगर more than 18 months है तो इसमें प्राइस वेरिएशन एप्लीकेबल होता है. प्राइस वेरिएशन क्या है? During the currency of the contract, if the rates are increased, we have to compensate the contractor. That is called price variation. इसमें different components होते हैं. लेबर component 20% होता है, उसके बाद मटेरियल component होता है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन, ये सभी 3-4 components होते हैं. उस कंपोनेंट में अगर रेट बढ़ रहा है तो हम इसको कंपनसेट करेंगे. तो इसी मोर देन 5 crores के लिए यहाँ पर अमाउंट नहीं है. यहाँ पर मोर देन 18 months अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो वो एप्लीकेबल है. किसने पूछा है कि फ्रॉम विच डेट वी शुड काउंट दी 7 years 3 years, जो हमने बाद में डिस्कस करेंगे. वी विल डिस्कस दैट. ठीक है. ये जो सर्विसेज में जो प्राइस वेरिएशन है, मान लो आपने एक आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज किया है, उसमें आप मिनिमम वेजेस देते हैं, सबको मिनिमम वेजेस देते हैं. मान लो आपका जो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 1 साल के बाद मिनिमम वेजेस बढ़ गए. मिनिमम वेजेस आपके जो पर्टिकुलर स्टेट हैं वहां के 800 रुपए के 1000 रुपये हो गए, 800 के 1200 हो गए. तो जब कभी ये मिनिमम वेजेस बढ़ता है तो मिनिमम वेजेस जो बढ़ने वाला जो कंपोनेंट है, इंक्रीज्ड कंपोनेंट ऑफ द मिनिमम वेजेस, वी हैव टू कंपनसेट एज ए प्राइस वेरिएशन इन द सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट. विसिएशन. विसिएशन क्या चीज है? अपने किसी ने पूछा व्हाट इज वेरिएशन, व्हाट इज विसिएशन. हम इसके बाद देखते हैं. अभी पहले 2-3 और डिस्कस करेंगे, फिर बाद में इसके बाद विसिएशन चलेंगे. तो विसिएशन का, वेरिएशन का मतलब यह है, कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज हो गया. कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज हो गया और हमारे पास एक 5-6 आइटम्स हो गए इसमें कॉन्ट्रैक्ट में. एक आइटम का एक वैल्यू है. एक आइटम नंबर 1 उसका क्वांटिटी 100, उसका वैल्यू है 5 लाख. उस तरह एक 5-6 आइटम्स हो गए इसमें. मान लो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन वो क्वांटिटी जो है वेरी हो गया. वेरी हो गया मतलब 100 का 150 हो गया. 100 एक दूसरी क्वांटिटी है 50, वो 50 का 25 ही रह गया. और दूसरी थर्ड क्वांटिटी है 100 था, वो 75 हो गया. मतलब देयर इज एन इंक्रीज और डिक्रीज इन द क्वांटिटी. दैट इज कॉल्ड वेरिएशन. वेरिएशन इन ए कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट में वैल्यू बढ़ रहा है, घट रहा है, बिकॉज द क्वांटिटीज बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, इसलिए वैल्यू भी बढ़ रहा है, घट रहा है. दिस इज कॉल्ड द वेरिएशन इन ए कॉन्ट्रैक्ट. फिर विसिएशन क्या है? व्हाट इज विसिएशन इन ए कॉन्ट्रैक्ट? मतलब आपने टेंडर बुलाया, एक 5-6 लोग टेंडर पार्टिसिपेट किए हैं. उसमें L1 आपका जो टेंडर में 5-6 आइटम्स हैं, 5-6 शेड्यूल है, 5 शेड्यूल है. एक शेड्यूल का एक आइटम ने मांगा. एक माइनस हमने शेड्यूल वैल्यू दे दिया वहां पर, उसको माइनस कोट करने के लिए बोला, माइनस और प्लस कोट करने के लिए बोला है. तो किसी ने शेड्यूल 1 में -1 कोट किया, दूसरा +5 किया, दूसरा -5, ऐसा डिफरेंट रेट्स कोट किया. बट ओवरऑल वैल्यू है जो L1 वाला, उसको हम ओवरऑल वैल्यू में एक L1 और L2 में 50,000 का डिफरेंस था, तो हमने इसको दे दिया, L1 को दे दिया. लेकिन जब एक्चुअल एग्जीक्यूशन हुआ है, जो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हुआ है, तो क्वांटिटीज फिर वेरी हो गए. मतलब पहले हमने 100 सोचा था, वो 200 हो गए. कहीं 50 सोचा था वहां, तो 10 हो गए. तो ये जो चेंज इन द क्वांटिटीज, उसके वजह से जो रेट्स दूसरे उसने कोट किया है, उनको हम कंपेयर करेंगे. तो जो पहले जो L1 था वो L2 हो गया, जो L2 था वो L1 हो गया. कितना डिफरेंस आ रहा है? जब तो 50 लाख का डिफरेंस था, तो अभी कितना हो गया? ये जो L1 है उसका 1 लाख ज्यादा हो गया. मतलब जो L2 से भी 50,000 ज्यादा हो गया. तो जो 50,000 जो ज्यादा हो गया,
वो अमाउंट को हम विसिएशन अमाउंट बोलते हैं। तो विसिएशन इज नथिंग बट the change in the inter-se position of the tenderers during execution of the time due to huge variation in the quantities, that is called vitiation. अगर जब vitiation आता है तो रेलवे बोर्ड डायरेक्टिव्स हैं कि भाई आपको इसको सिंगल टेंडर मानना चाहिए, जो 50,000 जो भी एक्सेस हुआ है उसको सिंगल टेंडर मानेंगे और सैंक्शन ऑफ जीएम लेंगे, ये कंडीशन था। लेकिन उसके बाद बहुत सारे केसेस पेंडिंग हो रहे थे, कॉन्ट्रेक्चुअल जो लिटिगेशन हो रहे थे, इनका बिल पास नहीं हो पा रहा था, तो बोर्ड ने करा भाई आप विसिएशन में आप अगर 50 लाख का टेंडर है तो 5% विसिएशन है तो आप अप्रूव कर सकते हैं, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, जीएम के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर टेंडर वैल्यू मोर देन 50 लाख है तो 5%, लेस देन 50 लाख है तो 10% आपको पास दिए गए। अगर इसके बाद भी अगर है तो फिर आप उसको जीएम के पास लेके जाएंगे। ये है विसिएशन। अच्छा, ये विसिएशन अगर आ गया तो फिर क्या करेंगे टेंडर में, वर्क्स में क्या करेंगे, इन केस ऑफ विसिएशन ऑफ टेंडर सैंक्शन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एज पर सिंगल टेंडर लेंगे। लेकिन जो 5% 10% जो छूट दी गई है बोर्ड द्वारा वो भी आ गया। लेकिन दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल केसेस वेयर फाइनल बिल्स आर पेंडिंग ड्यू टू विसिएशन इन द कॉन्ट्रैक्ट एज ऑन डे ऑफ इश्यू ऑफ द लेटर। इसमें क्या है, सर्विसेज में अगर विसिएशन हो गया, कुछ 50,000 ज्यादा हो गया, 1 लाख ज्यादा हो गया, तो हम उसको सीधा उसको हम उसमें बिल में से रिकवर कर देंगे। दिस इज द प्रोविजन इन दी जीसीसी फॉर सर्विसेज। ठीक है, तो ये आफ्टर नोइंग दी टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ जीसीसी और दूसरी चीजें, व्हाट टाइप्स ऑफ टेंडर्स हमने देखा है। देखिए हम टेंडर बुलाए हैं, ओपन टेंडर बुलाने के लिए कितना नोटिस देना था, 30 दिन का नोटिस देना था, 21 दिन का नोटिस देना था, दे दिया। टेंडर हमने IREPS द्वारा बुलवाए और टेंडर ओपन हो गया। तो पहले क्या था, ब्रीफिंग नोट बनता था। जब टेंडर ओपनिंग होती है तो जो हमारे एसओस जाते थे, सेक्शन ऑफिसर जाते थे, उसको ओपनिंग विटनेस करते थे मैनुअली। वो टेंडर बॉक्स में पूरे टेंडर्स गिरते थे, तो वो टेंडर खोल के उसको नंबरिंग करके उसको फाड़ के सबके सामने पढ़ते थे। दैट वाज दी ओपनिंग ऑफ टेंडर बिफोर दिस ई टेंडर्स। लेकिन ई टेंडर जब आने के बाद ये जो ओपनिंग वाला प्रोसेस यानी लिमिटेड टू दी स्क्रीन्स हो गया। पहले खुला होता था, अभी नाउ इट इज ओपन ओनली ऑन स्क्रीन। डिजिटल सिग्नेचर दिया जाता है सबको, ओपनिंग वालों को, क्लोजिंग वालों को। जैसा टाइम हो जाता है 3 बजे तक टेंडर हम लेंगे तो 3 बजते ही टेंडर बॉक्स ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है। किसी को विटनेस करने की जरूरत नहीं है। जैसा क्लॉक हो जाता है 0 पे आ जाता है ऑटोमेटिक, वो जो स्ट्रीम है, जो दरवाजा है जो टेंडर का, वो क्लोज हो जाता है। उसके बाद में फिर हमारे लोग जाते हैं, जो सेक्शन ऑफिसर जाते हैं, उसको DSC लगा के उसको ओपन करते हैं। जब पता चलता है कितने टेंडर्स आए हैं, टेंडर्स कितने आए हैं, वो ऑटोमेटिक एक टैबुलेशन देगा। पहले क्या होता था, टेंडर्स आने के बाद उसको टैबलेट करते थे, ब्रीफिंग नोट बनाते थे। ब्रीफिंग नोट में कितने हम, व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्क, व्हाट इज द सैंक्शन कॉस्ट, व्हाट इज द फंड कितना है, कितने हम टेंडर फॉर्म भेजे हैं, कितने टेंडर आए हैं, एक टेंडर का क्या क्या उसका कंडीशंस दिया है, कितने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, क्या क्या रेट किया है, ये सभी चीजें हम ब्रीफिंग नोट बनाते थे। सो दैट ब्रीफिंग नोट डज नॉट एग्जिस्ट टुडे। उसको वेटिंग की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज स्टेटमेंट बन जाता है। वो ब्रीफिंग नोट मैनुअली प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। पहले मैनुअली प्रिपेयर करते थे और यूज्ड टू गेट इट डन वेटेड बाय द फाइनेंस। अभी उस वेटिंग की जरूरत नहीं है ब्रीफिंग नोट को। द कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड ऑल द डिटेल्स ऑफ द टेंडर्स विल बी अवेलेबल ऑनलाइन। एक आपको स्टेटमेंट मिल जाएगा, वो उसी स्टेटमेंट को टेंडर कमेटी के सामने रखते हैं और वो फाइनलाइज करते हैं। ठीक है, तो हम वहां पे जाते हैं टेंडर फाइनलाइजेशन में। तो टेंडर बुलाया हमने, मान लो टेंडर वैल्यू 50 लाख है। सो टेंडर कौन फाइनलाइज करेगा? टेंडर फाइनलाइज करेगा एक टेंडर कमेटी, उसमें एक फाइनेंस ऑफिसर होगा, एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, और एक जो टेंडर कमेटी प्रोसीडिंग है वो कौन एक्सेप्ट करेगा? जो एक्सेप्टिंग अथॉरिटी, एक हायर लेवल पे एक्सेप्ट करेगा। जब टेंडर एक्सेप्टेंस होगा उसके बाद में लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इश्यू कर दिया जाएगा। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इश्यू कर दिया जाएगा, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा, फिर बाद में एग्जीक्यूशन होगा। ये प्रोसीजर है। ठीक है, तो हर बार टेंडर कमेटी बैठने की जरूरत नहीं। फिर क्या करें? अप टू 50 लाख, 50 लाख तक का आपको टेंडर कमेटी की जरूरत नहीं है। 50 लाख तक का टेंडर जो भी ओपन हो जाता है 21 दिन में, जो भी हम नोटिस पीरियड देते हैं 21 दिन 30 दिन, उसी दिन
ओपन हो जाता है, ओपन हो जाने पर एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो भी बन जाता है, उस स्टेटमेंट के बेसिस पे जो एक्सेप्टिंग अथॉरिटी होता है, जो वन लेवल अबव द टेंडर कमिटी होता है, विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द टेंडर ही कैन एक्सेप्ट डायरेक्टली। एक ही सिंगल बंदा होता है, जे ग्रेड बंदा, वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा अप टू 50 लाख, नो टेंडर कमिटी। ब्रीफिंग नोट जो बनता है उसको वेटिंग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एलओए जो इश्यू होता है, अगर डायरेक्ट एक्सेप्टेंस में एलओए इश्यू होता है, उसको वेट करते हैं। तो एक्सेप्टिंग अथॉरिटी क्या करेगा, ही शैल रिकॉर्ड ए रीजनड नोट रिगार्डिंग द इवैल्यूएशन एंड एक्सेप्टेंस। ये स्पीकिंग ऑर्डर देना पड़ेगा उसको, बोलेगा भाई हमने ओपन टेंडर बुलाया था, इतने पार्टिसिपेट किए हैं, सब लोगों ने ईएमडी दिया है, सब लोगों ने अपने अपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, ये रीजनेबल है, रेट रीजनेबल है, हम इसलिए मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। इसके टेंडर सैंक्शन कॉस्ट है, सैंक्शन एस्टिमेट है, फंड्स हैं, सभी चीजें हैं, इसलिए मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। सो कमिटी जो थी जैसे वो एक्सेप्ट करेगा, एलओए इशू कर दिया जाएगा। लेकिन अगर मान लो एक L1 रेट को, L1 वाले को उसको बाईपास कर रहा है एक्सेप्टिंग अथॉरिटी, तो ही कैन नॉट एक्सेप्ट डायरेक्ट एक्सेप्टेंस, वो उसको फिर कमिटी को जाएगा। सो व्हाट आर द कंडीशंस? डायरेक्ट एक्सेप्टेंस इज अलाउड ओनली व्हेन द टेंडर्स आर इनवाइटेड थ्रू द टेंडर। अगर हो गया तो टेंडर एक्सेप्टेंस, डायरेक्ट एक्सेप्टेंस हो सकता है। IREPS में कम से कम 21 दिन नोटिस पीरियड होना चाहिए, तभी डायरेक्ट एक्सेप्टेंस हो सकता है। एक्सेप्टिंग अथॉरिटी लो L1 को बाईपास नहीं करना चाहिए, जब भी एक्सेप्टेंस कर सकता है, डायरेक्ट एक्सेप्टेंस कर सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको टेंडर कमेटी को उसको पास ऑन करना पड़ता है। टेंडर कमेटी एग्जामिन करेगी और उसको फाइनलाइज करेगी। सो टेंडर कमेटी में अप टू 50 लाख डायरेक्ट एक्सेप्टेंस, 50 लाख 1 करोड़ जो होगा वो ADFM लेवल, जो जूनियर स्केल लेवल टेंडर होगा, और 1 करोड़ से 4 करोड़ तो सीनियर स्केल लेवल टेंडर कमेटी होगी। उसके बाद में ऊपर वाला जो जे ग्रेड कमेटी होगी। तो एक्सेप्टेंस एक 1 लेवल अबव होगा। ठीक है, ठीक है। सो एक डायरेक्ट एक्सेप्टेंस में थोड़े इश्यूज हैं। जो अप्रूविंग नोट है, जो टेंडर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी है, he has to give a reasoned note. But ऐसा नहीं कि somebody opens a tender, he puts up a note, he approves, ऐसा नहीं। He has to record the reasons why he is accepting. अगर टेंडर बाईपास करते हैं किसी को, तो टीसी को एग्जामिन करना है। If the L1 offer exceeds 50 lakhs, उसको फिर टीसी को देना है। वेटिंग ऑफ LOA ओनली फैक्चुअल वेरिफिकेशन करना है फाइनेंस वालों को, उसमें अपने उसको चेकिंग ऑफ फंड्स एस्टिमेट के बारे में करना है, लेकिन उस रेट्स के बारे में कभी हम कमेंट नहीं करेंगे। इट इज दी प्रेरोगेटिव ऑफ दी एक्सेप्टिंग अथॉरिटी। वो अपने मान लिया है, उसको रेट को रीजनेबल समझा है, उसकी जिम्मेदारी है। ठीक है, 50 लाख का टेंडर हो गया। अब पहले हमने 10 लाख का टेंडर डिस्पेंसेशन करा था, कोटेशन बेसिस पे दिया था। उसके बाद में 10 लाख से 50 लाख तक टेंडर हमने डायरेक्ट एक्सेप्ट करवा दिया। The tenders up to, value up to 10 lakhs we have done on quotation basis. 10 to 50 lakhs we have done direct acceptance without involving the tender committee. Beyond 50 lakhs there has to be a tender committee. तो टेंडर कमेटी का रोल क्या है? What is the role of tender committee? टेंडर कमेटी क्या देखेगी? पहले तो नॉमिनेशन होगा उसका, टेंडर वाले होगा। उसके बाद कंपोजिशन क्या है? एक तो फाइनेंस मेंबर होगा, एक एग्जीक्यूटिव। कितने मेंबर होना चाहिए? 2 मेंबर होना चाहिए 5 करोड़ तक का। उसके ऊपर 3 मेंबर होना चाहिए। तो मेंबर्स क्या करेंगे? वो एवेल्युएशन ऑफ ऑफर्स करेंगे, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे, फंड्स इंश्योर करेंगे, एस्टिमेट इंश्योर करेंगे, रेट रीजनेबिलिटी देखेंगे, नेगोशिएशन, रेट ज्यादा है तो फिर नेगोशिएशन के लिए रिकमेंड करेंगे। फाइनली जो भी कंसेंसस है उसको हम क्या करते हैं, टेंडर कमिटी प्रोसीडिंग्स द्वारा रिकमेंडेशन देते हैं। अगर मान लो दोनों के बीच में कुछ दिक्कतें हैं, कुछ ओपिनियन सही नहीं है, दोनों में जम नहीं रहा, तो डिसेंट नोट दे सकता है किसी एक मेंबर ने, और इन टेंडर को वैलिडिटी के अंदर उसको फाइनलाइज करना है। उसके बाद में फाइनलाइज करके हम एक्सेप्टिंग अथॉरिटी को पुट अप करेंगे। एक्सेप्टिंग अथॉरिटी वो रिकमेंडेशन को देखेगा, रिकमेंडेशन डायरेक्ट एक्सेप्ट कर सकता है। वो बोल सकता है कि भाई आपने जो ये गलत प्रपोज किया है, इसको फिर से एक बार देखो, इसको। ही कैन डायरेक्ट द टेंडर कमिटी टू री-लुक इनटू द रिकमेंडेशंस। ही कैन ओवररूल जो रिकमेंडेशन दिया है, ही कैन इवन ओवररूल, ठीक है तुम्हारा जो रिकमेंडेशन है ठीक नहीं है, मैं इसको L1 को ना मैं L3 को दे रहा हूँ, वो अपनी मर्जी है। लेकिन
अगर रिकमेंडेशन के खिलाफ जो भी काम कर रहा है जो एक्सेप्टिंग अथॉरिटी, वो खुद जिम्मेदार है। इसलिए जनरली जो भी रिकमेंडेशन वही एक्सेप्ट करते हैं, दूसरा काम नहीं करते। जैसा रिकमेंडेशन हो जाता है तो टेंडर कंक्लूड हो जाता है, एक्सेप्टेंस हो जाता है तो टेंडर कंक्लूड हो जाता है। उसके बाद में लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इश्यू कर दिया जाता है। जो सक्सेसफुल टेंडर है, जो भी है L1 जो भी है, उसको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस दिया जाता है। सो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस में लिखते हैं कि भाई आपको परफॉर्मेंस गारंटी लेके आना है। अगर सर्विसेज है तो 1 महीने में, अगर वर्क्स है तो 21 दिन में आप परफॉर्मेंस गारंटी, वर्क्स में 5% परफॉर्मेंस गारंटी, सर्विसेज में 10% परफॉर्मेंस गारंटी लेके आप आइए, आगे फिर अग्रीमेंट साइन करिए। सो LOA इशू हो गया, वो एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद में वो फिर परफॉर्मेंस गारंटी लेके आ जाएगा, तो फिर अग्रीमेंट साइन होगा, अग्रीमेंट विल बी साइन, देन ही स्टार्ट्स द एग्जीक्यूशन। लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है, जैसा लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इश्यू करते हैं वो काम करना शुरू कर देगा। लेकिन उसको ध्यान में ये रखना चाहिए कि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस के बाद इसको परफॉर्मेंस गारंटी लेके आना है, अग्रीमेंट साइन करना है, उसके बाद में काम शुरू करना है। दैट इज द प्रोसीजर। तो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ले लिया, परफॉर्मेंस गारंटी ले लेके आ गया, टाइम में लेके आ गया और अग्रीमेंट साइन कर दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट यानी साइन हो गया। उसके बाद में फिर एग्जीक्यूशन होगा। ये आपको जरूरत नहीं है। एग्जीक्यूशन होगा, टेंडर फाइनलाइज हो गया, टेंडर कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज हो गया। अब एग्जीक्यूशन क्या है? इट शुड बी स्ट्रिक्टली एज पर द स्कोप, टर्म्स एंड कंडीशन। जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो स्पेशल कंडीशंस है, जो जनरल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं, जो भी स्पेसिफिकेशंस हैं, जो भी शेड्यूल है, उसके हिसाब से उसको काम करना चाहिए। तो आजकल तो एक नया सिस्टम आया है, स्विचिंग ओवर टू IRWCMS, इंडियन रेलवेज वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम। ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। Indian Railways Works Contract Management System. This is a web-based application, IT-based application, through which the agreement is signed, the bills are passed, the measurements are made, the extension is granted. सभी चीजें इसी में हो रहे हैं। तो शुरू में क्या हो गया, IRPSM, Indian Railways Project Sanction Management वर्क प्रोसेस हो गया, अप्रूव हो गया, डिटेल एस्टिमेट सैंक्शन हो गया बाद में। उसके बाद में IREPS में टेंडर बुलाए गए, टेंडर फाइनलाइज कर दिए हैं। जैसा LOA इश्यू होता है, फिर IRWCMS आता है, IRPSM, IREPS एंड IRWCMS। अभी फिलहाल ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के काम में हो रहा है, उसके बाद में स्लोली इट विल बी स्प्रेड टू ऑल दी डिपार्टमेंट्स। एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा, जो क्वांटिटीज जो है इसमें वो दे कैन वेरी अप टू 25%, 25% तक वेरी कर सकता है विदाउट फाइनेंस कंकरेंस। अगर 25% से ज्यादा अगर क्वांटिटी वेरी होती है तो फाइनेंस कंकरेंस की जरूरत पड़ती है। अगर अग्रीमेंट ओरिजिनल करेंसी से ज्यादा एक्सटेंड हो रहा है तो उसको एक्सटेंड करना है, उसको सब अग्रीमेंट एग्जीक्यूट करना पड़ता है, और जो भी क्वांटिटीज बियॉन्ड 25% है उसको भी सब अग्रीमेंट करना पड़ता है। सब अग्रीमेंट इज सब्सिडियरी एग्रीमेंट। अगर वैलिडिटी खत्म होती है तो एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी देना पड़ता है। सो जैसे जैसे काम होता है तो प्रॉम्प्ट सेटलमेंट ऑफ बिल्स, ऑन अकाउंट बिल्स, फाइनल बिल्स पेमेंट करना चाहिए। और जब जो एक्सटेंशन ऑफ करेंसी जो भी है फाइनल बिल के लिए एक सप्लीमेंट्री, फाइनल सप्लीमेंट्री अग्रीमेंट बनता है या नया GCC के हिसाब से, उसके बाद में फाइनल बिल पास होगा। फाइनल बिल पास होने के बाद इमीडिएटली हम परफॉर्मेंस गारंटी दे देंगे उसका, फिर मेंटेनेंस पीरियड के बाद में सिक्योरिटी डिपॉजिट दे देंगे। एक फाइनल सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट है GCC में। ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जनरली जब बिल पास हो जाता है, मेजर फाइनल बिल एक ही पेंडिंग होता है, 2% का फाइनल बिल होता है, 98% वो काम कर चुका होता है और पेमेंट लेके चला जाता है। फाइनली उसका SD जब याद आता है, तो जब आता है वो फाइनल बिल प्रोसेस कर, जब तक 2-3 साल हो जाते हैं। तो 2-3 साल तक तो करेंसी होती नहीं है। तो जब एक फाइनल सप्लीमेंट्री अग्रीमेंट बनता है, फाइनल सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट बनता है, उसके हिसाब से वो फाइनल बिल पास होता है और कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ द वर्क इज सैंक्शन्ड एंड हाउ द टेंडर्स आर फाइनलाइज्ड। एंड इसके बाद में दूसरे भी हम टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो इफ यू हैव एनी डाउट्स नाउ यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस। Participants, please raise their hands. Yeah. Akash Karamkar, please unmute. हेलो सर। हाँ बोलिए। सर नमस्ते। नमस्ते आकाश को। सर मैं पूछना चाह रहा था सर, अभी जो लास्ट में बोले कि सर बियॉन्ड 25% जब वेरिएशन जाता है
तो सर सर एज पर आइटम नंबर 9A MSOP 2018 सर जी, सर। वहां पर सर समझने में थोड़ा सर प्रॉब्लम हो रहा है सर। हाँ। वहां पर लिखा है कि एनी वन आइटम के लिए सर जब बियॉन्ड 25% वेरिएशन जा रहा है तो वहां पर फाइनेंस कॉन्करेंस लेने का जरूरत नहीं है। तो सर ओवरऑल में भी क्या है सर ये वाला लागू होगा या ओवरऑल में लेना पड़ेगा सर फाइनेंस कॉन्करेंस जब 125% बियॉन्ड जा रहा है सर वेरिएशन? ठीक है, इसमें जनरली क्या है, जो हमारे जो इंजीनियरिंग कोड में जो भी होता है, इंडिविजुअल आइटम एक्सीडिंग 25% उसको कंकरेंस चाहिए और उसको सैंक्शन भी चाहिए। लेकिन जो एमएसओपी में उसको थोड़ा टेढ़ा करके लिखा गया है कि भाई अगर इंडिविजुअल आइटम होता है तो कंकरेंस जरूरत नहीं, ओवरऑल आइटम 25% जाता है तो कंकरेंस चाहिए। तो इसमें बहुत सारा मिसमैनेजमेंट भी होता है। इसको हम करेक्ट करने की कोशिश की है लेकिन वो नहीं हो पाया है। तो अब फिलहाल जो एमएसओपी में है तो इंडिविजुअल अगर आइटम अगर एक्सीड हो रहा है तो कंकरेंस अगर नहीं ले रहे हैं तो फिर हम उसको इंसिस्ट नहीं कर सकते क्योंकि एमएसओपी में लिखा हुआ है। तो ओवरऑल वेरिएशन अगर 25% जाता है तो फिर कंकरेंस की जरूरत है ना सर? बिल्कुल है, जरूरत है। जी 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 सर, यहाँ पर और एक क्वेश्चन है सर, जब 25% के ऊपर वेरिएशन जा रहा है तो उसको एडिशनल पीजी देना है। तो सर अभी रेलवे बोर्ड का नया सर्कुलर से 5% से 3% कर दिया है पीजी परफॉर्मेंस गारंटी। तो सर अभी एडिशनल पीजी भी क्या 3% ही होगा या 3% ही होनी चाहिए? जब ओरिजिनल पीजी ही 3% हो गई तो फिर एडिशनल पीजी भी 3% ही होना चाहिए। तो सर इसके लिए तो कोई क्लैरिटी नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, किसी जो एक्सेप्टिंग अथॉरिटी है उसको बोलिए भाई जो अगर वो मांगते हैं 3% तो आप अग्री कर सकते हैं। अगर वो नहीं मांगते हैं तो आप मत सजेस्ट करिए, डोंट सजेस्ट। Executive is asking, so we will take additional PG as applicable. Additional PG, तो PG applicable कितना था 10, जब additional PG कितना था 10, सब PG applicable कितना है 3, तो 3 ही ले लेंगे ना। ओके सर, लॉजिकली और कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी सर, मतलब सर अगर 3% एडिशनल पीजी देता है तो सर वो एक्सेप्ट कर लेंगे? बिल्कुल मतलब 5% के लिए हम लोग फाइनेंस वाले रिजिड नहीं रहेंगे? नहीं रहना चाहिए क्योंकि लॉजिकल है। वो 10 के जब 10 लिए, अब 3 के जब 3 ले लो। ओके सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट मिस्टर अविनाश, प्लीज अनम्यूट। हेलो, गुड इवनिंग सर। हम बोलिए सर। हमारा क्वेश्चन है सर, ये कोटेशन वाला जो फाइल आता है ना, जी, तो जी। उसमें ईएमडी और परफॉर्मेंस बैंक गारंटी का कोई क्राइटेरिया है क्या? बिल्कुल नहीं है, ईएमडी परफॉर्मेंस गारंटी कोटेशन में नहीं है। लेकिन आजकल क्या कर रहे हैं लोग, जब कोटेशन बुलाते हैं तो 1 साल का वर्क होता है। जनरली क्या होता है, अगर आप कोटेशन बेसिस में जो वर्क देते हैं, वर्क ऑर्डर होता है 1 महीने में खत्म होना चाहिए, 15 दिन में खत्म होना चाहिए। लेकिन ये लोग ना हायरिंग ऑफ व्हीकल्स के लिए कोटेशन, इसके लिए कोटेशन और आउटसोर्सिंग के लिए कोटेशन 1.5 साल का 2 साल का ले रहे हैं। तो उन चीजों में आप ईएमडी मत दीजिए, लेकिन परफॉर्मेंस गारंटी ले सकते हैं। ओके सर। और सर एक क्वेश्चन और है सर, ये सर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का अगर कोई फाइल आता है तो उसमें सर जीएसटी 12% ही रहेगा कि कुछ और भी हो सकता है? वर्क्स में कितना है 12%, ज्यादा नहीं होता है। लेकिन अगर सर्विसेज में 18%। लेकिन सर अगर फाइनेंस कंकरेंस के लिए फाइल आया है और 18% जीएसटी दिखा रहे हैं तो उसमें क्या? वो तो वर्क सर्विसेज नहीं है ना वो। अगर आउटसोर्सिंग की बात कर रहे हैं तो आउटसोर्सिंग में लगता है 18%। अच्छा। सर्विसेज में लगता है 18%। वर्क्स में 12% लगता है, वो इंक्लूसिव होता है, रेट में इंक्लूसिव होता है, उसके लिए सेपरेट नहीं होता है। तो सर आउटसोर्सिंग अगर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट रहेगा तो उसमें सर जीएसटी 12% ही होना चाहिए। बिल्कुल दैट टू इट इज इंक्लूडेड इन द रेट में इंक्लूसिव होता है। ओके सर। और सर एक क्वेश्चन और है जी, ये टेंडर कमेटी में सर ये डिसेंट नोट क्या होता है सर? डिसेंट नोट होता है, सब मान लो हमने इससे पहले डिस्कस किया था, 2 मेंबर कमेटी, 2 मेंबर में एक फाइनेंस मेंबर होता है, एक एग्जीक्यूटिव मेंबर होता है, 3 मेंबर में एक फाइनेंस होता है, एग्जीक्यूटिव होता है और दूसरा कोई सिस्टर डिपार्टमेंट वाला होता है। मान लो ये तीनों में कुछ मतभेद है, एक कह रहा है कि जो एग्जीक्यूटिव कह रहा है कि हम इसको देंगे, फाइनेंस वाला कह रहा है नहीं वो रेट ज्यादा है, मैं नहीं दे सकता। वो कह रहा है कि इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, ये इसके हिसाब से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है, तो देयर इज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। तो अगर उसको नहीं मान रहे, देयर इज नो कंसेंसस, देन वन ऑफ द मेंबर कैन गिव हिज ओन ओपिनियन, दैट इज कॉल्ड डिसेंट नोट। तो एक्सेप्टिंग अथॉरिटी उसको डिसाइड करेगा, ये अपना ओपिनियन देगा, वो उसका ओपिनियन देगा, फाइनली एक्सेप्टिंग अथॉरिटी वो अपना डिसाइड करेगा, दैट इज कॉल्ड
डिसेंट नोट। और सर एक एक डॉट और है सर, ये सर वेरिएशन स्टेटमेंट जब सर वेटिंग के लिए आती है फाइल, तो 100% वर्क हो गया है ना, और 25% तक वो विदाउट फाइनेंस कंकरेंस भी कर सकते हैं एक्सटेंड जी। और बियॉन्ड 25% अगर वो काम एग्जीक्यूट हो रहा है और फाइल बाद में आएगा, ऐसा कुछ है क्या सर? हाँ, ऐसे ही होता है जनरली। क्या वेरिएशन होने के बाद आता है रीजन, क्या बोलता है, एज पर द सेट कंडीशन बोलता है। तो इन सच सिचुएशन में मैं आप फाइनेंस वालों को एक एडवाइस दूंगा कि अगर मान लो आपको समझ में आ रहा है वो फेट अकम्पली है, काम कंप्लीट होने के बाद आ रहा है फाइल, तो उस सिचुएशन में हमने क्या करना है, हम कंकरेंस की बात नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, इट इज नोटेड दैट द वर्क हैज ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड since the case file has been referred to finance as a fait accompli, finance agrees for regularization of expenditure regulation के expenditure के वास्ते हम finance agrees subject to following conditions। आप जो भी conditions है लगे, finance concurrence की बात मत करो। अगर मान लो पहले आ रहा है तो finance concurrence देंगे, पर बाद में अगर आ रहा है, fait accompli आ रहा है, तो finance agrees for regularization of excess। Yeah. Next, Anusri Paul, please unmute. Good evening, sir. Good evening, believe। Sir, I have two questions. One is that क्या sir ये quotation work में क्या टेंडर शेड्यूल रेट होना जरूरी होता है क्या? फिर से बताइए। कोटेशन जैसे हमारा 5 लाख या 10 लाख का वर्क हो, जो कोटेशन में हम लोग करते हैं, प्रपोजल आते हैं, उसमें क्या टेंडर शेड्यूल वेट होना जरूरी है? इज इट नेसेसरी टू वेट द टेंडर शेड्यूल इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट टाइप ऑफ वर्क? आपको तो शेड्यूल ऑफ वर्क तो बनाना है ना कोटेशन में भी। कोटेशन में आप शेड्यूल ऑफ वर्क बताना है और वो शेड्यूल ऑफ वर्क वेट भी कराना है और शेड्यूल ऑफ वर्क आपको अपलोड भी करना है ना। कभी आप किसी को भेज रहे हैं तो उसको पता चले ना व्हाट इज द वर्क टू बी डन। ओके सर, अनदर क्वेश्चन इज सर, आपने अभी कुछ हमें बताया कि ये जो हम लोग विदाउट सैंक्शन ऑफ डिटेल एस्टिमेट prior vetting of tender schedule can be possible in respect of what kind of tender? Is it इमरजेंसी वर्क्स है? इमरजेंसी जैसा कि अभी हम जनरली देखते हैं कि ट्रैक वर्क्स होते हैं, ट्रैक कैनिवल में वो लोग एस्टिमेट बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए इससे पहले क्या करते हैं, वो डीआरएम वांट्स टू इन्वाइट द टेंडर्स, so they'll send the proposal to finance। भाई हमने हमारा जो डिटेल एस्टिमेट है वो बन रहा है, लेकिन मीनवाइल हम टेंडर बुलाना चाह रहे हैं, तो इसको वेटिंग करो। तो हम वेटिंग करेंगे, उसके बाद में हम उसमें कंडीशन ये लगाएंगे कि भाई जब डिटेल एस्टिमेट होगा तो हम उसको फिर से हम उसको क्रॉस चेक करेंगे, अगर कुछ डिविएशन रहा तो फिर आपको टेंडर डिस्चार्ज करना पड़ेगा। हम ये कंडीशन लिख के वेट करेंगे। अच्छा, और सर ये तब ये ऐसा हुआ कि ये स्पेशल लिमिटेड टेंडर के केस में होएगा, इसके मतलब is it applicable for special limited tender or all kinds of tenders, open tender? Any tender, whether it is limited tender, whether it is special limited tender, or it is open tender. Okay, thank you. Next, B. Kumar, please unmute. सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, जो टॉपिक थी जैसे वो जीसीसी फॉर वर्क्स, जीसीसी फॉर सर्विसेज, तो वर्क्स तो जैसे ही है वो माइंड में आ जाती कि ये काम होती है, इससे छोटे से लेकर बड़े से बड़े काम। लेकिन सर्विसेज जो जैसे शब्द आती है उससे क्या तात्पर्य, उसका मीनिंग क्या होगी सर्विसेज का? सर सर्विसेज इज नथिंग बट आउटसोर्सिंग। आपका जो आउटसोर्स, पहले हम अपने डिपार्टमेंट से काम करवाते थे जी, आज अपने पास डिपार्टमेंटल स्टाफ कम है जी, तो हम उसको क्या करें, जो हमारा जो काम है उसको आउटसोर्स कर दें। तो आउटसोर्सिंग सर्विसेज इज नथिंग बट आउटसोर्सिंग। आपके पास पहले बहुत सारे गाड़ी, बहुत सारे कार थे, अपने जीप थे, अपने व्हीकल्स थे, तो अपन अपने ड्राइवर चलाते थे। आज हम उसको पूरा ड्राइवर्स को सरेंडर कर दिए हैं और जो पुराने जो गाड़ियां थे उसको पूरा डिस्बर्स कर दिए हैं, हम उसको आउटसोर्स करें। तो जैसे गाड़ियों में साफ सफाई के लिए जो वो भी आउटसोर्सिंग है, पहले हमारे लोग करते थे, अभी आउटसोर्सिंग कर रहे हैं हम। जी बिल्कुल। सो आउटसोर्सिंग द सर्विसेज इज नथिंग बट आउटसोर्सिंग। सर एक वेटिएशन में जो है आप एक कंडीशन बताए थे इंटरशिफ्ट वाली, कि पहले जो L1 था वो L2 हो गया, वो मुझे ठीक से समझ में नहीं आई वो। अच्छा, मैं आपको एक काम करूंगा, आपके जो ग्रुप में ना एक दो केस स्टडीज हैं, मैं आपको डालूंगा, समझ में आएगा। ठीक है सर, अभी आप बता रहे थे IRWCMS, इसकी फुल फॉर्म एक बार बताएंगे सर? इंडियन रेलवेज वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है सर, एक जो है अभी आप स्लाइड में जो है एक टर्म आ रही थी OEM, इसकी फुल फॉर्म थोड़ा बताएंगे सर? ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। सर
हाँ हाँ, बताइए बताइए सर। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर और उसका ऑथराइज्ड डीलर जो भी है। जी सर, एक और थे DIPP। DIPP इज डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी एंड प्रमोशन एंड पॉलिसी। उसमें क्या होता है, ये लोग MSMEs को, डिप को, जो स्टार्टअप्स को उसको बढ़ावा देते हैं लोग। अगर ये सम इज रजिस्टर्ड विद डिप, वी नीड नॉट आस्क फॉर द EMD। जी 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 सर, बिल्कुल। थैंक यू सर। नेक्स्ट शशिकांत करे, प्लीज अनम्यूट। Yeah, please speak. Shashikant Kare, please. Next, P. Kumar, please unmute. सर मेरा क्वेश्चन था, टेंडर वैल्यू यदि सर, टेंडर वैल्यू सर यदि 2 करोड़ तक रहेगा जी, तो टेंडर नोटिस पीरियड सर 21 दिन का हम करेंगे। अप टू 1 करोड़, अप टू 1 करोड़ जो टेंडर है उसका है, आप विदाउट फाइनेंस कंकरेंस 21 डेज कर सकता है वो अपने आप। अगर 2 करोड़ का रहे तो फिर उसको फाइनेंस कंकरेंस लेना पड़ेगा। 2 करोड़ के ऊपर जो भी है, अगर 21 दिन 14 दिन जो भी है उसको फाइनेंस कंकरेंस लेना पड़ेगा, अदरवाइज ही कैन डू ऑन हिज ओन। अच्छा सर, SG जो लेते हैं और PG भी लेते हैं सर, दोनों में मतलब कि क्या उसका उद्देश्य फुलफिल होता है सर, SG और PG का सर? आपको वर्क्स में आपको SD होता है, सर्विसेज में SD नहीं होता है। यस सर। जो पर्पज एक ही है दोनों का। पहले तो EMD तो आप समझ में आ गया ना, EMD क्यों लेते हैं। EMD इज टेकन टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द रेलवेज टिल द टेंडर इज फाइनलाइज्ड। अगर मान लो बीच में अगर वो टेंडर विड्रॉ करता है तो हम उसका EMD फॉरफिट करते हैं। और फॉरफिट EMD टेंडर फाइनलाइज हो गया, कंक्लूड हो गया, हम L1 को ऑर्डर दे दिए हैं, L1 को ऑर्डर दे दिए हैं, उसको परफॉर्मेंस गारंटी लेके आना पड़ेगा। सो वर्क्स के लिए 5%, सर्विसेज के लिए 10% लेके आएगा तो फिर अग्रीमेंट साइन करेगा। उसके बाद में फिर आता है आपका SD सर्विसेज में नहीं होता है, क्योंकि वहां पर SD हम परफॉर्मेंस गारंटी 10% लेते हैं। वर्क्स में हम सिक्योरिटी डिपॉजिट रिकवरी करते हैं फ्रॉम ऑनगोइंग बिल्स। ठीक है। सो SD हमें इसलिए उपयोगी है क्योंकि मान लो किसी काम में आपको मेंटेनेंस पीरियड इन्वॉल्व है, तो उस मेंटेनेंस पीरियड में अगर जो भी बाधाएं हैं, जो भी दिक्कत आती है, उसको कवर करने के लिए SD हम रोक के रखते हैं 6 महीने 9 महीने, डिपेंडिंग ऑन दी नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो EMD का पर्पस है अप टू टेंडर फाइनलाइजेशन, परफॉर्मेंस गारंटी का पर्पस है अप टू कंप्लीशन ऑफ द वर्क, SD का मतलब है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द वर्क। Next, Mr. B. Kumar, please unmute. B. Kumar, please unmute. सर नमस्कार। नमस्ते जी। सर ये ओपन टेंडर में अगर सिंगल ऑफर प्राप्त होता है जी, तो क्या पहली बार हमको ऑब्जर्वेशन लगा सकते हैं या फिर एक्सेप्ट कर लिया तो उसे कर देना पड़ेगा? नहीं, आपको टेंडर के बारे में, टेंडर एक्सेप्टेंस के बारे में हमें फाइनेंस सेक्शन से कुछ ऑब्जर्वेशन नहीं सुना है। हम मान लो आपके पास ब्रीफिंग नोट आ गया, आपके पास लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आ गया वेटिंग के लिए। ब्रीफिंग नोट तो आजकल नहीं आ रहा है, तो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आ गया आपके पास, आप उसके बारे में कमेंट नहीं करना है फाइनेंस में। इट इज द रोल ऑफ द टेंडर कमिटी, इट इज द रोल ऑफ द एक्सेप्टिंग अथॉरिटी। हम ये नहीं बोलेंगे कि भाई इसमें सिंगल ऑफर है, इसको डिस्चार्ज करो, ऐसा नहीं बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे। अच्छा, ऐसा नहीं बोलना है सर। हाँ, ये हमारा रोल नहीं है। इट इज द रोल ऑफ द टेंडर कमिटी एंड द एक्सेप्टिंग अथॉरिटी। हमारा जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है, हम केवल फैक्चुअल वेरिफिकेशन करेंगे, सब्जेक्ट टू करके भी नहीं, इसमें कुछ डालना ही नहीं। सब्जेक्ट टू आप नहीं बोलेंगे कि भाई एक ही ऑफर आया है, इसको डिस्चार्ज करो, ऐसा नहीं बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। ओके सर, ओके। हमारा केवल ये रोल है कि फैक्चुअल वेरिफिकेशन, उसमें क्या वैल्यू दिया गया है, एक्सेप्टिंग अथॉरिटी क्या वैल्यू अप्रूव की है, एक्सेप्टिंग अथॉरिटी कुछ कंडीशन लगाया, वो कंडीशंस में आए नहीं है, टेंडर कमेटी ने कुछ कंडीशन लगाया, ये कंडीशंस में आए नहीं, हम वही देखेंगे, फैक्चुअल वेरिफिकेशन। ओके सर, ओके, थैंक यू। Mr. Yadav, please unmute. Mr. Yadav, please unmute. गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग सर, वेसिएशन का केस जो है एक्सेप्शनल है, तो उस स्थिति में सर कितना केस डिस्पोजल किया जा सकता है? वेसिएशन एक्सेप्शन है? जी जी, फिर से बताएं। वेसिएशन का केस सर, उसमें कंडीशन है रेलवे बोर्ड में जो एक्सेप्शनल केस में करना है, वो नेगोशिएशन, हाँ, नेगोशिएशन शुड बी एक्सेप्शनल, वेसिएशन नहीं, नेगोशिएशन शुड बी एक्सेप्शनल। तो नेगोशिएशन जनरल नहीं है, इट्स नॉट कॉमन, only occasion demands, only in case of very specific cases only we should go for negotiations. Exception वो नहीं है, वेसिएशन नहीं है।
Next, Janaki, please unmute. Hi sir, namaste sir. What is vitiation, sir? Vitiation is the change in the interstate position of the tenderers during execution of the contract. मतलब आप contract में शुरू में suppose if there are some 4 or 5 tenderers L1 to L5, so you have given a contract to L1 with some varied percentages and different schedules. During execution, what happens? This quantities, the value of the schedules will change. एक कम होगा, एक ज्यादा होगा. So if you apply the original quoted rates of L1, L2 with these varied quantities, the L2 will become L1 and L1 will become sometime L4, L3. So the change in the interstate position of the tenderers during execution is called vitiation. मैं आपको एक दो case studies ना I will put in the group. You are in which group? Sir, Zoom Club 5 and 6. I'll put that some case study. There are 2-3 sheets. I'll put that. Okay, thank you. Thank you. Next, Ajay Singh, please unmute. सर नमस्ते। अजय बोलो। सर नमस्ते। नमस्ते सर ये कह रहे हैं कि हमारा कोई अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन खुद कॉन्ट्रैक्टर के ग्रुप में काम कर रहा है तो क्या एसडी पीजी देना उसके लिए कंपलसरी है? कंपलसरी कुछ नहीं है, बोर्ड ने इंस्ट्रक्शन दिया है कि भाई यू डोंट इंसिस्ट ऑन दी ओईएम्स। अभी रिसेंटली अपने जीसीसी में भी पीएसयूज आर एग्जेम्प्टेड, ईएमडी इज एग्जेम्प्टेड, और पीएसयूज के पास आप अगर सिंगल टेंडर जाएंगे तो वहां पर भी परफॉर्मेंस गारंटी लेना जरूरी नहीं। नहीं तो हमारे यहाँ सर केस आए हैं ऐसे, तो हमको जब एचडी पीजी के लिए बार बार फोर्स किया जा रहा है देने के लिए बार बार फोर्स किया जा रहा है देने के लिए। ऐसा नहीं ना, अभी एग्जीक्यूटिव क्या प्रपोज कर रहा है? एग्जीक्यूटिव प्रपोज कर रहा है कि मांग रहा है एनपीसीआईएल, वो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है एनपीसीआईएल। एग्जीक्यूटिव प्रपोज कर रहा है कि हम लेंगे। हाँ लेंगे तो ले लो ना, फिर हमें क्यों पंगा? फाइनेंस वाले लेट अस नॉट से दैट। नहीं तो इसके लिए कोई अगर फाइनेंशियल लॉस होगा तो इसके लिए वो बोलेगा ना, उसको पूछिए भाई व्हाट इज जस्टिफिकेशन फॉर दिस। आप जस्टिफिकेशन मांगिए कि भाई आप क्यों लेना चाहिए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, आप क्यों लेना चाह रहे हैं? तो बोलेगा बोलेगा भाई नहीं, इसमें बहुत सारे इम्प्लीकेशन है। क्योंकि सर हम ऑन बिहाफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया काम कर रहे हैं सर। बिल्कुल है, बिल्कुल सही है, लेकिन मान लो बाद में कुछ काम खराब हो गया जी। ऐसा है आजकल जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो लोग, हम ये नहीं मान के चलते कि वो लोग सही काम करेंगे। यस यस। हाँ, तो अगर एग्जीक्यूटिव बोल रहा है कि लेंगे तो लेंगे, कोई नहीं, नो इश्यू। ठीक है। I think there are no more queries, sir. There is one actually one message from which date we should count 7 or 3 years. हमने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ड्यूरिंग लास्ट 7 years, ड्यूरिंग लास्ट 3 फाइनेंशियल, सो ये इसमें इंक्लूडिंग ड्यूरिंग लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स इंक्लूडिंग करंट फाइनेंशियल ईयर, ड्यूरिंग लास्ट 7 फाइनेंशियल ईयर्स इंक्लूडिंग करंट फाइनेंशियल ईयर, ये होता है। ठीक है, ओके। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर पूछ रहे सर, और एक ये कंफ्यूजन था सर। पूछ रहे थे कि सर फिजिकल वर्क कंप्लीट हो चुका है, एग्जीक्यूटिव ने सर्टिफाई कर दिया है फिजिकल वर्क कंप्लीट हो चुका है, तो कॉन्ट्रैक्टर ने किया सर वो अपना पीजी और एडिशनल पीजी सर रिलीज कर लिया है सर। बिल्कुल ले सकते हैं सर। उसके बाद सर जब फाइनल सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट भेंट होने के लिए आ रहा है तो वहां पर वेरिएशन दिखा रहा है सर 125% अबव वेरिएशन हो रहा है, तो उस समय सर जो एडिशनल पीजी लेंगे तो सर वो सर नहीं, उस समय क्योंकि आप फाइनल सेटल कर रहे हैं उसको, फिर परफॉर्मेंस गारंटी क्यों लेंगे? तो सर तब जब सर फाइनल सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट भेंट करने के समय अगर वेरिएशन 125% के बियॉन्ड गया तो मुझे एडिशनल पीजी का जरूरत नहीं है सर तभी। बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी परफॉर्मेंस गारंटी लेके काम करना नहीं है ना, उसको भी काम हो गया ना वो। अच्छा सर, मतलब सर कंप्लीशन जब फिजिकल कंप्लीशन ऑफ वर्क जब हो गया है तो एडिशनल पीजी का कोई ये बात नहीं आ रहा है सर। बिल्कुल वही मैंने वेरिएशन जाने से भी। हाँ, एक्चुअली उसको पहले प्रपोज करना चाहिए था, लेकिन पता नहीं जब तक क्यों वेट किया है, लेकिन वेट किया है तो इस सिचुएशन में हम एडिशनल पीजी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर हमें लेंगे फिर वापस करेंगे ना उसको। फाइनल सेटलमेंट हो, अभी फाइनल सेटलमेंट हो जा रहा है अभी। हाँ सर, और एक बात सर, जब सर एक्सटेंशन ऑफ टाइम दे रहा है सर अंडर 17A ऑफ जीसीसी सर, जब विदाउट पेनल्टी सर ईओटी जब ग्रांट कर रहा है एग्जीक्यूटिव, तो सर वहां पर 17A1 में लिखा है सर 1 month प्रायर सर
कॉन्ट्रैक्टर को रिक्वेस्ट लेटर देना पड़ेगा एक्सटेंशन ऑफ टाइम के लिए। लेकिन सर प्रैक्टिकली सर देख रहे हैं कि सर 6-7 महीना बाद या 1 साल बाद सर वो रिक्वेस्ट लेटर दे रहा है। सर उस समय क्या करेंगे सर, क्योंकि उसका तो सर करेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो जा रहा है, उसके बाद सर वो रिक्वेस्ट लेटर भेज रहा है सर, तो उस समय क्या करें सर? उस समय हम केवल ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं उसको कि भाई एक्चुअली उनकी जिम्मेदारी है, एग्जीक्यूटिव जिम्मेदारी है, दिस इज नॉट अवर। जी सर, अपना रोल नहीं है, लेकिन उसको बहुत जरा एक धक्का दे सकते हैं कि भाई ये क्या हो गया, आपने तो ओरिजिनल करेंसी में कुछ मांगा ही नहीं, उससे कुछ प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम है पता है आपको? और क्या होता है, उनके पास प्लान्स एंड ड्राइंग्स रेडी नहीं होते हैं, प्लान्स एंड ड्राइंग रेडी नहीं होते हैं, इसलिए वो एक साल के बाद जब प्लान्स एंड ड्राइंग देगा वो बोलेगा सर मेरा तो करेंसी हो गया, आप अगर एक्सचेंज करेंगे तो फिर मैं करूंगा। तो इसमें डिपार्टमेंटल का लैप्स होता है। अब कहीं नहीं कहीं अगर ऑब्जर्व करेंगे तो फिर वही दिक्कत आ जाएगी, फिर ऑडिट वाले पकड़ेंगे, विजिलेंस वाले। जी सर तो उसका प्रायोरिटी छोड़ दो उसको। ओके सर, मतलब वो एग्जीक्यूटिव अगर सैंक्शन कर दिया है तो सर कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम बोलेंगे, हमारे बॉस को बोलेंगे सर आप अपने जो फोरम में मीटिंग डीआरएम के मीटिंग के सामने उनको डीआरएम को बता ही दो कभी कभी, और उनको बोलो आपके बॉस को बोलो सर इसको हम शैल बी पॉइंट आउट। अगर मान लो 1 बार हो रहा है तो ठीक है, 2 बार हो रहा है तो ऐसे रेगुलरली हो रहा है तो इसको हाईलाइट करना जरूरी है। हाँ सर, रेगुलरली हो रहा है तो इसको हाईलाइट एसेंशियल करना ही पड़ेगा, क्योंकि सर ये प्रैक्टिस बन जा रहा है। मतलब सर अगर प्रैक्टिस बन जा रहा है तो उसको रेस करिए, इशू करिए। जी सर, ओके सर, थैंक यू। किसी ने पूछा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेंडर एंड कोटेशन। मैंने तो वेरी क्लियरली बताया था, कोटेशन यानी टेंडर बुलाने की जरूरत नहीं है, कोटेशन इज फॉर स्मॉल वैल्यू वर्क। कोटेशन यानी मिनिमम 3 कोटेशन होनी चाहिए फॉर अवार्ड ऑफ वर्क। उसमें ईएमडी नहीं होता है। स्मॉल वैल्यू वर्क्स, अर्जेंट वर्क्स को कोटेशन करके फाइनलाइज करते हैं अप टू 10 लाख। टेंडर इज डिफरेंट। टेंडर वी हैव टू कॉल फॉर टेंडर थ्रू IREPS, नोटिफिकेशन देना पड़ेगा। उसके बाद में वो टेंडर कमेटी बैठेगी, टेंडर एक्सेप्टेंस वगैरह अग्रीमेंट बनेगा। इसमें कोटेशन में अग्रीमेंट नहीं बनेगा, वर्क ऑर्डर बनेगा, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो और कुछ है? नेक्स्ट मिस्टर विक्रमजीत। हेलो सर। हाँ बोलिए सर। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर बोल रहे हैं कि काम कंप्लीट हो गया। हाँ। कॉन्ट्रैक्टर पीजी रिलीज के लिए अप्लाई किया है, लेकिन उसी काम में ये है कि गारंटी पीरियड है, तो पीजी रिलीज हो सकता है क्या? फिर से बताइए, आप वो काम कंप्लीट हो गया है? काम कंप्लीट हो गया, कॉन्ट्रैक्टर पीजी रिलीज के लिए अप्लाई किया है। बिल्कुल दे सकते हैं ना, उसका उसी काम में सर मैंने उस एग्रीमेंट में अगर ये रहेगा गारंटी पीरियड रहेगा कि 2 साल बाद उसका ये गारंटी रहेगा, तो हम उसको रिलीज कर सकते हैं क्या? आपका जो बैंक गारंटी जो देते हैं, परफॉर्मेंस गारंटी जो देते हैं, वो हाँ सर, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के बाद 6 महीने और 3 महीने वैलिड होता है। हाँ सर, ठीक है। जो आपका जो वारंटी है, वारंटी के लिए अगर सेपरेट अगर परफॉर्मेंस गारंटी लेते हैं वो अलग बात है। अगर नहीं वही हम है तो वारंटी वो रहेगा, उसका जो अग्रीमेंट रहेगा उसमें उसको हम एनफोर्स कर सकते हैं। उसके लिए परफॉर्मेंस गारंटी रोकना मेरे ख्याल से गलत है, क्योंकि जो परफॉर्मेंस गारंटी की जो पीरियड है वो दैट इज वैलिड 6 months आफ्टर दिस कंप्लीशन ऑफ दैट कंप्लीशन पीरियड, ओरिजिनल कंप्लीशन पीरियड। उसके बाद में वो अगर वो नहीं भी लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। रिलीज आप उसका डेट हो गया, उसके बाद आप उसको रख के भी फायदा नहीं है ना। नहीं सर, वो अगर सपोज वो मैंने 2 साल का ये है, तो वो 2 साल के लिए वो कंडीशन पे होता है। कंडीशन में एक्स्ट्रा कंडीशन होगा। हाँ, अगर टेंडर कंडीशन में है तो दिस परफॉर्मेंस गारंटी कैन बी केप्ट टिल द वारंटी पीरियड बोलता, हम उसको रोक सकते हैं, अदरवाइज रोकना नहीं चाहिए। अच्छा सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट मिस्टर सितारा, प्लीज अनम्यूट। सितारा फ्रॉम सितारा। Sir, good evening, sir. Good evening. Why do you put your name as Sitara? Sir, good evening. Good evening. You tell me, why do you put your name as Sitara? सर वैसे ही नाम रख दिया सर, सितारा। अच्छा ठीक है, नाइस, बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये था सर कि अपेंडिक्स 3 का एग्जाम सर अगले साल होगा या इस साल होगा? ये साल होगा। पॉसिबिलिटी सर, पॉसिबिलिटी।
पॉसिबिलिटी ऐसा होगा। ओके सर, थैंक यू सर। मुझे कम से कम नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये गेस है खाली, हमारी भविष्यवाणी। लास्ट पर शंभू कुमार प्लीज अनम्यूट। नमस्कार सर। नमस्ते जी। हाँ सर, ये EMD जो है IREPS के थ्रू मैंने ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं इस आज के डेट में, और दूसरा मोड में तो अभी नहीं ले सकते हैं सर? बिल्कुल नहीं ले सकते। ओके, थैंक यू सर। राइट। विक्रमजीत सर प्लीज। सर हाँ जी, एक रिक्वेस्ट है सर जी। बस सर, आज जो पढ़ा है सर इसके बारे में जो जितना क्वेश्चन होगा सर मैंने अपेंडिक्स 3 में पूछा जा सकता है, आप सर काइंडली सर ग्रुप में दे दीजिएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बना ही रहा हूँ। मैं एक 1 वीक में आपको डाल दूंगा। ठीक है। ठीक सर, ठीक। No more queries. I think there are no more queries, sir. I think we can. Yeah. Was it really hectic for you today? 2 sessions back. Okay, sir. On behalf of all participants, on behalf of Sitara, I thank all the participants. I also thank the speaker of the day, Sri Abduluddin Garu. Thank you very much. So it was an absorbing session. Once again, it is very nice to hear this subject again and again from you. That is more clear as we listen more on this topic. Thank you. The topic, to remind the topic for the next session, that is tomorrow, we will have source of finance, login session at 14:45, 15 hours. Thank you one and all. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.